معزز سامعین السلام علیکم۔ ایف ایم اسٹوریز چینل میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ناول روڈ سائڈ اسٹوری۔ مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے۔ کہانی کا دوسرا حصہ۔ نشیمن آباد کی مضافاتی کالونی کی ایک چھوٹی سی کوٹھی کے سامنے عمران نے جب کار روکی تو وہاں پولیس کے ساتھ ساتھ اسے سپر فیاض بھی باہر نکلتا ہوا نظر آیا۔ عمران دروازہ کھول کر نیچے اترا تو سپر فیاض کی نظریں اس پر پڑی تو اپنے ساتھ باتیں کرنے والے پولیس آفیسر کو چھوڑ کر تیر کی طرح عمران کی طرف بڑھا۔ تمہیں کس نے اطلاع دی ہے؟ سپر فیاض نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری ایک بھابھی ہے جسے ہم تکلفاً بیگم فیاض کہتے ہیں، حالانکہ اسے شوہر فیاض کہنا چاہیے۔ اس نے ابھی مجھے فون کیا ہے کہ اس کی بیوی جس کا نام مسمسات فیاض ہے نشیمن آباد کی کوٹھی میں مسخ شدہ لاش دیکھنے گیا ہے۔ اس کا خیال رکھنا، اسے لاش دیکھ کر بخار ہو جاتا ہے اور اسے بخار کو اتارنے کے لیے وہ اسے نوکری شدہ جوتی نہیں توڑنا چاہتی۔ عمران نے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا تاکہ اس کی آواز سپر فیاض کے ماتحتوں تک بخوبی پہنچ جائے، اور سپر فیاض کا بگڑا ہوا چہرہ اور زیادہ بگڑ گیا۔ شٹ اپ، بکواس مت کرو، منہ توڑ دوں گا۔ کاش تمہاری گرفتاری کے احکامات منسوخ نہ ہو جاتے تو میں دیکھتا کہ تم کیسے ٹر کرتے ہو۔ سپر فیاض نے بری طرح بگڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ منسوخی سے پہلے تم نے کون سا تیر مار لیا تھا؟ ڈیڈی کو اصل غصہ تم پر ہے کہ تمہارے سامنے ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر کو اغوا کیا جا رہا ہے اور تم کھڑے اپنی ٹوپی ٹھیک کرتے رہے اور پتلون اونچی کرتے رہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور سپر فیاض خفیف سا ہو کر رہ گیا۔ بس یہی بکواس آتی ہے تمہیں؟ پہلے یہ بتاؤ کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں تمہارے مطلب کی کوئی چیز نہیں، بس عام سی قتل کی واردات ہے۔ سپر فیاض نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ اسے شاید جلدی عقل آ گئی تھی کہ وہ عمران سے جتنا بگڑ کر بات کرے گا عمران اتنا ہی بکواس زیادہ کرے گا، اس لیے اس نے نرم انداز اختیار کر لیا۔ اگر عام سی واردات تھی تو پھر تم یہاں اپنی یونیفارم کی نمائش کیوں کرنے آ گئے؟ پولیس نمٹ لیتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سپر فیاض ہونٹ بیچ کر رہ گیا۔ تم واقعی شیطان ہو، آؤ تم پر بھی تیر چلا لوں، سپر فیاض نے کہا اور کوٹھی کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ عمران سر ہلاتا ہوا اس کے ساتھ بڑھنے لگا۔ اسے اس کی اطلاع صفدر کے ذریعے ملی تھی۔ صفدر اس علاقے میں کسی دوست کے پاس آیا تھا، اسے کوٹھی نمبر بھول گیا تھا تو اسے اتفاق سے یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ اس کوٹھی پر پہنچ گیا۔ کوٹھی کا گیٹ اندر سے بند نہ تھا۔ صفدر دوست کا پتہ کرنے اندر گیا تو اسے کوٹھی خالی محسوس ہوئی اور پھر ایک کمرے میں 5 لاشیں نظر آئیں جنہیں گولیوں سے ہلاک کیا گیا تھا اور ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے تھے، لیکن ایک اہم چیز صفدر کی تیز نظروں سے نہ چھپ سکی۔ ایک لاش کے ہاتھ میں انگوٹھا ڈبل تھا۔ صفدر نے یہ انگوٹھا ہوٹل تاج میں ہونے والی واردات کے سلسلے میں جو فوٹو چھپایا تھا اس میں نقلی عمران کے ساتھ ایک آدمی کے فوٹو میں دیکھا تھا۔ اس آدمی انداز ایسا تھا جیسے وہ بھی اس نقلی عمران کے ساتھ ہی فرار ہو رہا ہو۔ اس وقت تو سب نے اسے تماشائی سمجھا تھا، لیکن اس انگوٹھے کو دیکھنے کے بعد صفدر کے ذہن میں فوراً یہ بات آ گئی کہ فوٹو میں اس آدمی کے چہرے پر خوف و ہراس کے تاثرات کے بجائے اطمینان اور سکون کے تاثرات نمایاں تھے۔ چنانچہ اس نے اس کوٹھی کی تلاشی لی، لیکن یہاں سے صرف اتنا پتہ چلا کہ اس کوٹھی کے ایک کمرے میں منشیات اسٹور کی جا رہی تھی۔ اس سے زیادہ اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا تو اس نے ایکس 2 کے اس انگوٹھے اور اخبار میں فوٹو کا حوالہ دے کر واردات کے متعلق بتایا، جس پر بلیک زیرو نے اسے کوٹھی کی نگرانی کا حکم دیا اور بلیک زیرو نے رانا ہاؤس میں موجود عمران سے بات کی تو عمران کو بھی خیال آ گیا کہ واقعی صفدر کی ریڈنگ درست تھی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ ان لوگوں کا تعلق کسی نہ کسی ہوٹل تاج کی واردات سے بنتا ہے۔ چنانچہ وہ خود یہاں چیکنگ کے لیے آیا، لیکن یہاں پولیس نظر نہ آئی تو سمجھ گیا کہ کسی اور ذریعے سے پولیس کو اطلاع ملی ہوگی اور پھر منشیات کے اسٹور کی وجہ سے انٹیلیجنس کو بھی اطلاع دی گئی اور اس طرح سپر فیاض بھی پہنچ گیا ہوگا۔ عمران نے کمرے میں آ کر لاشوں کو دیکھا۔ اس وقت پولیس فوٹوگرافر لاشوں کی فوٹو بنانے میں مصروف تھے۔ عمران غور سے انہیں دیکھتا رہا۔ یہ سب ایک چھوٹی سی میز کے گرد فرش پر پڑے ہوئے تھے، حالانکہ ذرا فاصلے پر کرسیاں بھی موجود تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ کسی وجہ سے میز کے گرد جمع تھے۔ البتہ ایک لاش دوسرے کمرے میں ایک آرام کرسی پر پڑی ہوئی تھی۔ عمران نے سب لاشوں کو غور سے دیکھا۔ یہ تو مرنے سے پہلے بے ہوش تھے، عمران نے کہا۔ مرنے سے پہلے بے ہوش تھے؟ وہ کیسے؟ کیا تم نے انہیں مرنے سے پہلے دیکھا تھا؟ سپر فیاض نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ یہ مرنے سے پہلے مجھ سے پوچھنے آئے تھے کہ ایسا طریقہ بتاؤ کہ مرنے میں تکلیف نہ ہو، تو میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ مرنے سے پہلے بے ہوش ہو جاؤ، بس اتنی سی بات تھی، عمران نے کہا اور سپر فیاض نے منہ بنا لیا۔ تم سے بات کرنی ہی حماقت ہے، کھڑے دیکھتے رہے لاشیں۔ میں جا رہا ہوں، خواہ اس پاگل انسپکٹر نے مجھے فون کر دیا تھا کہ یہاں منشیات کا اسٹور ہے۔ اب جب میں نے آ کر دیکھا تو کہیں کوئی منشیات ہی نہیں ہے۔ میں نے اس انسپکٹر کو اچھی
अच्छी खासी झाड़ पिला दी। ख्वाह अपना केस इंटेलिजेंस के गले में डालने की कोशिश करते हैं, सुपर फैयाज ने कहा और पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। इमरान ने भी उसे ना रोका क्योंकि वो खुद यही चाहता था कि वो चला जाए ताकि वो इत्मीनान से जायज़ा ले सके, वरना सुपर फैयाज सर पर चढ़ाता रहा। सुपर फैयाज के जाने के बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर झंझलाहट के आसार नुमाया थे। इमरान साहब, आपने देखा सुपर फैयाज साहब का रवैया, एक तो उन्हें उससे मुतल्लिका केस की इत्तला दो, ऊपर से झाड़े भी सुनो। इंस्पेक्टर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। ये इंस्पेक्टर गौरी था। इमरान और खासे वाकिफ़ था। झाड़ किस का काम होता है, स्वीपर का या जवार का? जो तुम उसे स्वीपर के बजाय सुपर कह रहे हो, उसने तो बिगड़ना तो था ना, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और इंस्पेक्टर गौरी इमरान की बात सुनकर बेख्तियार हंस पड़ा। उसका चेहरा खिल उठा था। शायद इमरान उसके फ़िक्रे से उनका इंतकामी जज्बा पूरा किया गया हो। इमरान साहब, आपने ठीक कहा है। वैसे इमरान साहब, आप यहाँ कैसे आए? इंस्पेक्टर गौरी ने कहा। बस वैसे ही यहाँ से गुजर रहा था कि सुपर फैयाज को देखकर आ गया, लेकिन वो तो गुस्सा होकर चला गया है। तुमने फैयाज को फ़ोन किया था? इमरान ने कहा। हाँ इमरान साहब, यहाँ एक कमरे से मंशियात की तेज़ बू आ रही थी और वहाँ ऐसे शवाहिद थे कि यहाँ मंशियात की भारी मकदार स्टोर होती रही है, इसलिए मैंने सोचा कि फैयाज साहब को इत्तला दे दूँ। शायद इस वारदात का ताल्लुक मंशियात की स्मगलिंग से हो, और आपको तो इल्म होगा कि मंशियात की स्मगलिंग का शोबा आजकल इंटेलिजेंस के सुपर्द है। इंस्पेक्टर गौरी ने कहा। अच्छा, इसीलिए आजकल दारुल हुकूमत में मंशियात की रेल पेल है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और इंस्पेक्टर गौरी एक बार फिर हंस पड़ा। फैयाज साहब कह रहे थे कि उन्होंने देखा है कि हलाक होने से पहले ये लोग बेहोश थे। उन्होंने कैसे अंदाज़ा लगा लिया? इंस्पेक्टर गौरी चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। और इमरान आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि सुपर फैयाज ने बाहर जाकर इमरान वाली बात इंस्पेक्टर गौरी को कहकर उस पर रोब जमाने दिया, क्योंकि सुपर फैयाज की ऐसी ही आदत थी, वो रोब जमाने का कोई मौका भी हाथ से न जाने देता था। उन्होंने मरने से पहले सुपर फैयाज से मशवरा लिया होगा, इमरान ने कहा। और इंस्पेक्टर गौरी एक बार फिर कहका मार कर हंस पड़ा। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं इसकी कोठी का तफसीली जायज़ा ले लूँ। अब सुपर फैयाज तो भाग गया। मैं चाहता हूँ कि कोई सबूत मिल जाए तो मैं तुम्हें बता दूँ, ताकि इस केस के हल करने का सहरा तुम्हारे सर हो जाए, इमरान ने कहा। ओ इमरान साहब, आपकी मेहरबानी होगी। मुझे मालूम है कि सुपर फैयाज की मदद किया करते हैं। प्लीज़, मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा। इंस्पेक्टर गौरी ने बड़े ममनूनाना अंदाज में जवाब दिया। और इमरान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और उसने लाशों का तफसीली जायज़ा लेना शुरू कर दिया। गोलियों से पैदा होने वाले ज़ख्म और लाशों के अंदाज से तो इतना तो वो देखते ही समझ गया था कि इन पर बेहोशी के आलम में गोलियाँ चलाई गई हैं, वरना उनका ये अंदाज़ कभी ना होता। इमरान ने उन लाशों को चेक करने के बाद दूसरे कमरे में जाकर आराम कुर्सी पर पड़ी हुई लाश का मुआयना शुरू कर दिया, और दूसरे लम्हे वो एक तवील सांस लेकर रह गया। उसका चेहरा मसक कर दिया गया था, लेकिन जल्दी में ज़्यादा ज़रबात ना आई थी, और इमरान ने चेहरे पर मौजूद मेकअप कर लिया। इमरान ने उसके लिबास पर नज़र डाली और फिर उसके कोट की तलाशी लेनी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद वो एक छोटी जेब से एक कागज़ बरामद करने में कामयाब हो गया। उसके ऊपर फंदर का नाम लिखा हुआ था और नीचे कैफ़े मालाबार का अंदरूनी नक्शा बना हुआ था, और उसके साथ 20,000 रुपये लिखे हुए थे। कागज़ की दूसरी तरफ से होटल ताज का नाम और अंदरूनी नक्शा बना हुआ था, और साथ 20,000 रुपये की रकम लिखी हुई थी। इमरान अब सारी सूरत हाल समझ गया था। उस लाश का चेहरा बच गया था और वो बिल्कुल इमरान जैसा था, और ये मेकअप था। उस लाश के साथ फर्श पर शराब की 3 खाली बोतलें पड़ी हुई थी। इमरान ने एक बोतल उठाई और उस पर मौजूद लेबल को गौर से देखता रहा। फिर उसने बोतल रख दी और कमरे से बाहर आ गया। मुख्तलिफ कमरों को अच्छी तरह चेक करने के बाद उसने फैसलाकुन अंदाज में सर हिला दिया। उसी लम्हे इंस्पेक्टर गौरी उसके पास आया। इमरान साहब, कोई पता चला? इंस्पेक्टर गौरी ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। तुम बताओ, तुम्हारी क्या तफ्तीश है? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। इमरान साहब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शक्लें उनकी मसक हो चुकी हैं। अलबत्ता उस डबल अंगूठे वाले के मुतालिक मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से पता कराया है। वहाँ से पता चला है कि ये मुकामी गुंडा है। उसका रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद है। उसका नाम रामा है। बस उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, इंस्पेक्टर गौरी ने कहा। रामा? ये वही रामा तो नहीं जो असले की स्मगलिंग में फंसा था लेकिन फिर फरार हो गया था? इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी यही बताया है कि ये चंद माह पहले असले की स्मगलिंग में बहुत बड़ा केस पकड़ा गया था। ये भी उसमें शामिल था। बाद में पुलिस की हिरासत से फ़रार हो गया था, इंस्पेक्टर गौरी ने खुश होते हुए कहा।
ٹھیک ہے، اب سنو، میرے والے کیس کا تو تمہیں علم ہی ہوگا، کیفے مالابار اور ہوٹل تاج والے قصے کا، عمران نے کہا۔ ارے ہاں عمران صاحب، میں تو پوچھنا ہی بھول گیا تھا، وہ کیا قصہ تھا؟ آپ نے تو بڑے آدمی مار دیے، لیکن آج ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر تو سرکاری طور پر یہ وضاحت کر دی گئی تھی کہ آپ ملک سے باہر ہیں اور اب آپ یہاں موجود ہیں۔ مجھے تو سپر فیاض کے چکر میں پوچھنے کا خیال ہی نہیں آیا، اس نے ہی میری مت مار دی تھی، انسپکٹر غوری نے چونک کر کہا۔ وہ سرکاری راز ہے، تم اس بات کو چھوڑو اور سنو، صبح اخبارات میں جب تمہارا فوٹو آئے گا تو تم اپنی ذہانت سے ایک پیچیدہ واردات حل کر لی ہے تو تم دیکھنا سپر فیاض کیسے اپنا سر پیٹتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے پیچیدہ واردات حل کر لی ہے، کیا مطلب؟ انسپکٹر غوری نے کہا۔ چلو حل نہیں کی، غور تو کیا ہے، خواہ تمہیں غوری نہیں کہتے۔ سنو انسپکٹر، کیفے مالابار اور ہوٹل تاج میں جس نقلی علی عمران نے وارداتیں کی ان کی لاش اندر پڑی ہے آرام کرسی پر۔ ابھی تک ان کے چہرے پر عمران اور انسپکٹر غوری کی پہلی تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، پھر اس نے میک اپ موجود ہے، عمران نے کہا، باقاعدہ چھلانگ لگائی اور اس کمرے کی طرف دوڑا۔ عمران مسکراتا ہوا وہیں کھڑا رہا۔ بالکل عمران صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ کتنا مزہ آئے گا، سارے ملک میں انسپکٹر غوری کا نام گونجنے لگے گا۔ انسپکٹر غوری تو خوشی سے ناچ اٹھا۔ سنو اب اس ساری واردات کی تفصیل۔ راما کا ایک گروپ ہے جو مل کر وارداتیں کرتے ہیں، ہر قسم کی وارداتیں، جس میں اسلحے اور منشیات کی اسمگلنگ بھی شامل ہے۔ کسی مجرم تنظیم نے علی عمران کو اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہوئے اسے الجھانے کے لیے راما گروپ کی مدد حاصل کی، اور یہ بھی فندر نامی مجرم جو میک اپ کا ماہر ہے اور علی عمران کے قد و قامت کا ہے، اسے علی عمران کا میک اپ کروایا گیا اور اس نے پہلے کیفے مالابار میں واردات کی، پھر تاج ہوٹل میں۔ یہ راما گروپ کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں انہوں نے رقم تقسیم کرنی تھی۔ فندر شراب کا عادی ہے، اس نے واردات کرنے کے بعد یہاں آ کر خوب دل کھول کر شراب پی، جبکہ راما اور اس کے ساتھی اس تنظیم سے رقم کا بیگ لے آئے اور وہ ساتھ والے کمرے میں چھوٹی میز پر بیگ رکھ کر جب اسے کھولنے لگے تو اس بیگ کے تالوں کے ساتھ بے ہوش کر دینے والی زود اثر گیس کا کنیکشن فٹ تھا۔ جیسے ہی انہوں نے بیگ کھولنے کی کوشش کی، گیس نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ مجرم تنظیم کا آدمی باہر موجود تھا، وہ اندر آیا اور اس نے پہلے ان چاروں کو سائلنس لگے ریوالور سے گولیاں ماری اور پھر دوسرے کمرے میں گیا اور فندر کو جو نشے کی دھت آرام کرسی پر پڑا تھا اس کے سینے میں بھی اس نے گولیاں اتار دی اور رقم کا بیگ لے کر واپس چلا گیا۔ عمران نے واردات کا پورا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، اور انسپکٹر غوری کا چہرہ حیرت کی ذاتی سے بری طرح بگڑ گیا تھا۔ اس کا اندازہ ایسا تھا جیسے وہ الف لیلہ کی کوئی کہانی سن رہا ہو۔ لیکن عمران صاحب، میں ثبوت کہاں سے دوں گا؟ اعلیٰ افسران تو کبھی اس بات کو تسلیم نہ کریں گے، غوری نے لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں کہا۔ جب نقشہ سمجھ میں آ گیا تو ثبوت میں کون سی دیر لگتی ہے؟ یہ دیکھو، یہ کاغذ فندر کی چھوٹی جیب سے نکلا ہے، اس پر اس کا نام لکھا ہوا ہے، ساتھ ہی ایک طرف کیفے مالابار کا اندرونی نقشہ اور 20,000 روپے اور دوسری طرف ہوٹل تاج کا اندرونی نقشہ اور 20,000 روپے لکھے ہوئے ہیں۔ اب بولو، اس سے کیا ثبوت ہوتا ہے کہ یہی کہ فندر نے یہ حرکت رقم کے لیے کی ہے اور 20,000 ایک واردات کے لیے اس کے ساتھ طے ہوئے؟ چہرے پر موجود میک اپ جو مجھ جیسا ہے اور جسم پر میری طرح ٹیکنی کلر لباس، یہ تو ایک ثبوت ہے۔ اب راما گروپ کی شمولیت کا ثبوت تو پاکیشیا ٹائمز میں ہوٹل تاج کی واردات کا جو فوٹو شائع ہوا ہے اس میں اس فندر کے ساتھ ایک آدمی نظر آ رہا ہے جس کا انگوٹھا ڈبل ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ وہ عام تماشائی کی طرح پریشان ہراساں نہیں بلکہ مطمئن اور پرسکون ہے۔ اس کی آنکھوں میں مشن کی کامیابی چمک ہے اور اس کا انداز ایسا ہے جیسے وہ فندر کو وہاں سے بچا کر لے جانا چاہتا ہے۔ اور سنو، اس فوٹو میں فندر نے جو بوٹ پہنا ہوا ہے اس پر ایک پر تو اوپر سے سلائی ادھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے اور فندر کی لاش کے پیر میں وہی بوٹ ہے، سلائی ادھڑی ہوئی ہے۔ اب آؤ رقم والی طرف تو دیکھو، میز پر بیگ جتنی چوڑائی کے واضح نشانات موجود ہیں اور پھر بیگ کو اٹھاتے ہوئے گھسیٹے جانے کی مخصوص لکیر ہے اور وہ بھی صاف نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد ان کے گرنے کی انداز بتا رہے تھے کہ یہ درمیان میں رکھی ہوئی میز کے گرد کس طرح اکٹھے تھے۔ ان میں سے سارے تقریباً ایک طرف ہیں، ظاہر ہے اس طرف بیگ کا رخ ہوگا اور وہ بیگ کو کھول کر اندر رکھی جانے والی رقم دیکھنا چاہتے ہوں گے۔ پھر ان کے گرنے کا انداز اور ان پر چلائی جانے والی گولیوں کا انداز اور رخ بتا رہا ہے کہ ایک آدمی نے جو دروازے سے داخل ہو کر اس میز تک پہنچا، ان بے ہوش پڑے ہوئے افراد پر گولیاں چلائی، پھر ان میں سے بیگ اٹھایا اور دوسرے کمرے میں جا کر فندر کو ہلاک کیا اور باہر چلا گیا۔ اگر تم اچھی طرح تلاشی لو تو اس کے علاوہ بھی ثبوت مل جائیں گے۔ یقیناً وہ شخص کسی کار میں آیا ہوگا، اس کی کار چیک ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ ارے عمران صاحب، آپ تو واقعی کمال کے آدمی ہیں، حیرت ہے، کار والی بات بھی ٹھیک ہے۔ ایک منٹ ٹھہرے، ساتھ والی کوٹھی کا چوکیدار کسی سرخ رنگ کی کار کے متعلق بتا رہا تھا جو باہر کھڑی ہے۔ میں نے اس کی بات کا خیال ہی نہیں کیا، ٹھہرے میں اسے بلاتا ہوں۔
इंस्पेक्टर गौरी तो खुशी से उछलते हुए कहा और तेज़ी से बाहर की तरफ दौड़ गया। इमरान सोचने लगा कि फंदर और रामा को उस काम पर किसने आमादा किया होगा और वो किसका आइडिया होगा, लेकिन उसके आगे अंधेरा था। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर गौरी एक अधेड़ उम्र आदमी को साथ ले आया। अब बताओ बाबा, वो कार कैसी थी? इंस्पेक्टर गौरी ने कहा। जनाब, सपहर का वक्त था, सुर्ख रंग की एक कार यहाँ गेट के साथ आकर रुकी। मैं जब अपने गेट से बाहर आया तो कार खड़ी थी, उनमें कोई आदमी ना था। फिर मैं सौदा लेने चला गया, वापस आया तो वो कार जा चुकी थी। मैंने कोई ख्याल ना किया। अब पुलिस को यहाँ देखने के बाद मुझे ख्याल आया कि शायद कार का इस वारदात से कोई ताल्लुक हो। अधेड़ उम्र आदमी ने कपकपाते हुए लहजे में कहा। तुम घबराओ नहीं, ये बताओ कार का नंबर क्या था? इमरान उसे धाड़स देते हुए कहा। वो समझ गया था कि पुलिस की वजह से वो घबराया हुआ है। जनाब, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, नंबर वगैरह नहीं पढ़ सकता। अलबत्ता एक निशानी मुझे कार की याद है, और वो भी ज़रा अजीब सी बात है कि उसके जहन में ही रह गई। चौकीदार ने कहा। क्या निशानी थी? इमरान ने चौंकते हुए पूछा। जनाब, उसके शीशे एक तरफ कोने में एक आदमी का फ़ोटो बना हुआ था किसी कागज़ पर। उस आदमी ने हाथ में एक सांप पकड़ा हुआ था जिसका मुंह वो चबा रहा था। चौकीदार ने जवाब दिया। अच्छा, वाकई हैरत अंगेज़ बात है। कार नई थी या पुरानी? इमरान ने पूछा। जनाब, बिल्कुल नई कार थी, लंबी सी। चौकीदार ने जवाब दिया। अच्छा, ये बताओ तुम यहाँ रहने वालों को जानते हो? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, हमारी कोठी अभी तामीर होना शुरू हुई है, मुझे यहाँ आए 1 हफ्ता हुआ है और मैं ज़्यादातर अंदर ही रहता हूँ। चौकीदार ने जवाब दिया। इमरान समझ गया कि पुलिस केस की वजह से अगर वो जानता भी होगा तो अब नहीं बताएगा। उसने कार वाली बात कैसे बता दी? ठीक है बाबा, शुक्रिया, अब तुम जाओ, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और चौकीदार सलाम करके वापस चला गया। न जाने कैसी थी। बहरहाल गौरी साहब, अब आप जाने और आपके आला ऑफिसर, अब मैं चलता हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए गौरी से कहा। जनाब, आपका बेहद शुक्रिया। प्लीज़ आप किसी को बताइएगा नहीं कि मुझे आपने ये सारी बातें बताई हैं। गौरी ने मन्नत भरे लहजे में कहा। मुझे कुत्ते ने काटा है कि मैं पुलिस को बताता फिरूं? पुलिस वाले तो पहले मुझे धर लेंगे, इमरान ने कहा और तेज़ी से भागकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कोठी से बाहर आकर वो अपनी कार की तरफ बढ़ा और चंद लम्हों बाद उस कार चौक की तरफ बढ़ी। फिर इमरान ने एक तरफ से सफदर की कार निकलकर अपने पीछे आती देखी। इमरान ने अपनी कार एक तरफ करके उसे रुकने का इशारा किया और ख़ुद कार से बाहर आ गया। सफदर भी कार रोककर बाहर आ गया। कोई ख़ास बात मालूम हुई इमरान साहब? सफदर ने पूछा। हाँ, सब कुछ मालूम हो गया। और फिर इमरान ने मुख्तसर तौर पर उसे वारदात का पस मंज़र बताया। अब तुम ऐसा करो कि अपने साथियों समेत वो सुर्ख रंग की कार तलाश करो जिसके शीशे के कोने में उस आदमी की तस्वीर हो, ये ज़रूरी है। इमरान ने उससे कहा। ठीक है, मैं मिस जूलिया से बात करता हूँ, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा और इमरान अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसके जहन में चौकीदार की बताई हुई तस्वीर चुपकी हुई थी। उसे याद आ रहा था कि ऐसी तस्वीर उसने कहीं देखी ज़रूर है, लेकिन कहाँ देखी है उसे याद ना आ रही थी। चुनांचे उसने फैसला किया कि पहले दानिश मंजिल जाकर वो मुजरिम तंजीमों की कैटलॉग चेक करेगा। शायद ये तस्वीर किसी मखसूस तंजीम के निशान के तौर पर उसने कैटलॉग में मौजूद हो। वैसे रामा का असली की स्मगलिंग के साथ ताल्लुक़ भी उसके जहन में खटक रहा था। ये छापा भी इमरान के कहने पर सुपर फैयाज से डलवाया था और उस छापे में खासी तादाद में जदीद तरीन असला पकड़ा गया था, लेकिन फैयाज की हिमाकत की वजह से असल मुजरिम फरार हो गए। मुकामी लोगों की गोली मार दी गई थी। ये रामा फरार हो गया था। इस तरह कुछ पता न चला था कि यह असला कौन स्मगल कर रहा था और उसे कहाँ पहुँचाया जाना मकसूद था, लेकिन अब रामा ग्रुप की मदद से उसे कुछ समझ में आ रहा था कि मुजरिम उसे उलझाकर अपना कोई मिशन पूरा करना चाहते हैं, जिसके पूरे किए जाने में उनके ख्याल के मुताबिक इमरान रुकावट बन सकता था। लेकिन ऐसा कौन सा मिशन हो सकता है, इस बात पर अब इमरान गौर कर रहा था। गहरी तारीकी ने हर तरफ अपना डेरा डाल रखा था। अंधेरा इस कदर गहरा था कि आसमान पर चमकने वाले तारे भी मद्धम पड़ चुके थे। यूँ महसूस हो रहा था जैसे गहरे सियाह रंग की एक बड़ी सी चादर ने माहौल को ढांप रखा हो। उस अंधेरे में एक सियाह रंग की बड़ी सी कार हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। उसकी तमाम बत्तियां बंद थी और गहरे अंधेरे के एक जुज बन चुकी थी, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ नौजवान बड़े मुतमईन अंदाज में कार चलाते जा रहा था। उस कार एक वसी मैदान में से गुजर रही थी कि जिनमें बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। साथ वाली सीट पर जैगर बैठा हुआ था। उसने अपनी रानों पर एक हल्की मशीन गन रखी हुई थी, जबकि पिछली सीट खाली थी। जैगर खामोश बैठा हुआ तारीकी को घूर रहा था। अंधेरे में उसके चेहरे के तासुरात नजर ना आ रहे थे। बॉस, हम पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं,
ड्राइवर ने अचानक जैगर से मुखातिब होकर कहा। अच्छा। जैगर ने चौंक कर कहा और सीधा होकर बैठ गया। अभी पॉइंट कितनी दूर है? जैगर ने पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का काशन मिल जाएगा, ड्राइवर ने मुतमईन अंदाज में जवाब देते हुए कहा, और जैगर ने सर हिला दिया। वो इस वक्त पाकिस्तान की जुनूब मशरकी सरहद में वाक़ इलाके में मौजूद थे। करीब ही हमसाया मुल्क का सरहद थी। चूँकि उस मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात गुज़िश्ता कुछ अरसे से बेहद कशीदा थे, इसलिए उस तरफ फ़ौजी नक़्लो हरकत खासी थी। पाकिस्तान की फ़ौज ने सरहद के साथ साथ पड़ाव डाला हुआ था, इसलिए उसका सारा इलाका स्मगलिंग के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो चुका था। लेकिन ये लोग जिस तरह इत्मीनान से आगे बढ़ते जा रहे थे, उससे ज़ाहिर होता था कि वो इस खासी रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ ख़तरा नहीं है। अभी वो थोड़े आगे बढ़े होंगे कि ड्राइवर ने कार रोक ली और फिर उसने जेब में से एक छोटा सा टॉर्च निकाला और फिर उसे हाथ में लेकर खिड़की से बाहर हाथ निकालकर उसका रुख आसमान की तरफ करके उसका बटन दबा दिया। सर की तेज़ आवाज़ सुनाई दी और कोई चीज़ सरसराती हुई आसमान पर चढ़ती चली गई। चंद लम्हों बाद आसमान पर एक सितारा टूटा और लंबी सी लकीर बनाता हुआ गायब हो गया। ड्राइवर और जैगर की नज़रें आसमान पर जमी हुई थी। थोड़ी देर बाद दूर आसमान पर वैसे ही एक और सितारा टूटा और लकीर बनाकर गायब हो गया। रास्ता साफ है, ड्राइवर ने मुतमईन अंदाज में कहा और तेज़ी से कार आगे बढ़ा दी। अब मैदान में ऊंची ऊंची घाटियां थीं। ड्राइवर ने बड़े मोहतात अंदाज में कार चलानी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद एक घना दरख्त अंधेरे में लपटा हुआ नजर आने लगा। उसका साया नजर आ रहा था। जैसे जैसे कार उसके करीब पहुंच गई, दरख्त वाज़ेह होता गया। ड्राइवर ने कार दरख्त के करीब जाकर रोक दी। आइए बॉस, आप यहाँ से पैदल जाना होगा, ड्राइवर ने कार से नीचे उतरते हुए कहा और जैगर सर हिलाता हुआ नीचे उतर आया। अब मशीन गन उनके हाथों में थी। स्याह रंग के चुस्त लिबास में वो अंधेरे का एक हिस्सा बन गए थे। ड्राइवर आगे आगे था जबकि जैगर उसके पीछे चल रहा था। अभी वो थोड़ी दूर गए थे कि अचानक दाएं तरफ कुछ फासले पर एक जुगनू सा चमका और दोनों बिजली किसी तेज़ी से ज़मीन पर लेट गए। ये जुगनू माचिस की तीली थी। किसी ने सिगरेट सुलगाया था। माचिस की रोशनी में उन्होंने एक फ़ौजी सिपाही का चेहरा देखा था और अब सिगरेट का कश लेने से उसका मध्यम सा खाका उन्हें नज़र आ रहा था। वो दोनों दम से सादे पड़े हुए थे। फिर ड्राइवर ने जैगर को इशारा किया और वो कमांडर्स के से अंदाज में ज़मीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर एक झाड़ी के पास पहुंचकर ड्राइवर रुक गया। उसने झाड़ी के अंदर हाथ डाला और दूसरे लम्हे हल्का सा खटका हुआ और झाड़ी दरमियान से दो हिस्सों में तकसीम होकर दोनों अतराफ में हट गई। कौन है? अचानक दूर से एक लड़खड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी। खटके की आवाज़ शायद उस सिगरेट पीने वाले सिपाही ने सुन ली थी। झाड़ी की हटने से अंदर जाती हुई एक मसनूई सुरंग नज़र आने लगी। वो जल्दी से रेंगकर उस सुरंग में दाखिल हो गए और फिर खटाक की हल्की सी आवाज़ के साथ ही उनकी अकब पे बंद हो गई और वो दोनों ही सुरंग में खामोश पड़े रहे क्योंकि उन्हें कदमों की धमक नज़र आती सुनाई दे रही थी। चंद लम्हों बाद फौजी बूटों की धमक ऐन उनके सरों पर पहुंच गई। ये एक ही आदमी के कदमों की आवाज़ थी और वो दोनों सुरंग में खामोश लेटे हुए थे। चंद लम्हों तक ये धमक उन्हें इधर उधर घूमती सुनाई दे रही थी। उसके बाद वापस हो गए और वो दोनों ने इत्मीनान का सांस लिया और वो बाल बाल बच गए। जब कदमों की धमक मदम हो गई तो वो आहिस्ता आहिस्ता आगे रेंगने लगे। सुरंग टेढ़े मेढ़े अंदाज में आगे बढ़ती हुई थी और इतनी तंग थी कि एक आदमी बमुश्किल इसमें रेंगकर आगे बढ़ सकता था। ड्राइवर आगे था जबकि जैगर उसके पीछे जा रहा था। सुरंग में हवा का कोई इंतज़ाम न था, इसलिए उन दोनों का लम्हा बलम्हा सांस लेने में तंगी सी महसूस हो रही थी। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद सुरंग ऊपर को उठ गई और फिर ड्राइवर ने दीवार पर हाथ रखा और पहले जैसी खटाक की आवाज़ सुनाई दी और मध्यम तारों से भरा आसमान नज़र आने लगा और उसके साथ ही उन्होंने ताज़ा हवा हासिल करने के लिए ज़ोर ज़ोर से सांस लेनी शुरू कर दिए। ड्राइवर रेंगर बाहर आ गया। जैगर ने भी उसकी पैरवी की। यहाँ भी मुकम्मल अंधेरा था और वैसी झाड़ी थी जैसे झाड़ी के अंदर से सुरंग में दाखिल हुए थे। उसकी झाड़ी से बाहर निकलते ही झाड़ी बंद हो गई और वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वो एक दरख्त के पास पहुंच गए। उस दरख्त के नीचे एक छोटी स्याह रंग की कार मौजूद थी और कार के साथ एक आदमी का हल्का सा खाका नज़र आ रहा था। ड्राइवर ने कार के करीब पहुंचने पर आहिस्ता से ज़मीन पर अपना हाथ मखसूस अंदाज में मारा तो कार के करीब खड़ा नौजवान यकलक चौंक पड़ा। उसने उसी अंदाज में अपने हाथ कार की डिग्गी पर मारा। हल्की सी थपाक की आवाज़ सुनाई दी और ड्राइवर और जैगर दोनों उठकर खड़े हो गए और फिर तेज़ी से कार की तरफ बढ़ने लगे। रॉड, नौजवान ने उनके करीब आने पर सरगोशी के अंदाज में कहा। उसके हाथों में मशीन गन मौजूद थी।
रॉडर ड्राइवर ने उसी सरगोशाना अंदाज में कहा। ओके बैठो, नौजवान ने कहा, और वो दोनों कार के पीछे दरवाज़ा खोलकर उसमें सवार हो गए, जबकि नौजवान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और दूसरे लम्हे कार का इंजन बेआवाज़ अंदाज में जाग पड़ा और कार हरकत में आ गई। मेरा नाम राठौर है, ड्राइवर ने कहा। मैं बाटनी हूँ और ये बॉस जैगर हैं, पिछले नशिस्त पर बैठे ड्राइवर ने जवाब दिया, जबकि जैगर खामोश बैठा रहा। कार उसी ऊंची नीची घाटियों से होती हुई आगे बढ़ती चली गई और कुछ देर बाद वो अंधेरे में डूबती हुई इमारत के पास जाकर रुक गई और वो तीनों ही बगैर कुछ कहे कार से नीचे उतर आए। राठौर ने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया और वो उसकी पैरवी करते हुए इमारत के अंदर दाखिल हो गए। एक बंद दरवाजे पर राठौर ने आहिस्ता से दस्तक दी। कौन? अंदर से सरगोशाना आवाज़ सुनाई दी। राठौर, मेहमान आ गए हैं, राठौर ने उसी तरह सरगोशी के अंदाज में जवाब देते हुए कहा। यस कम इन, अंदर से जवाब मिला और ड्राइवर ने दरवाजे को आहिस्ता से धकेल दिया। अंदर कमरे में भी अंधेरा ही था। राठौर और बाटनी और जैगर अंदर दाखिल हुए। राठौर ने मुड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसी लम्हे चट की आवाज़ उभरी और कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। कमरे की एक दीवार के साथ एक बड़ी सी मेज़ के पीछे एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला फौजी यूनिफॉर्म में मुलव्वस आदमी लोहे की कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके कांधों पर मौजूद सटार बता रहा था कि वो कर्नल है। उन्हें आता देखकर वो उठ खड़ा हुआ। बॉस जैगर और ये बाटनी है, रॉडर ग्रोव, राठौर ने मौतबाना अंदाज में कर्नल से मुखातिब होकर कहा। कर्नल प्रकाश, कर्नल ने मुसाफे के लिए हाथ आगे करते हुए कहा और बाटनी और जैगर ने उसे मुसाफा किया और फिर कर्नल के इशारे पर वो मेज़ के सामने रखी हुई लोहे की कुर्सियों पर बैठ गए। कैप्टन राठौर, तुम बाहर जाकर ख्याल रखो, कर्नल ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए राठौर से मुखातिब होकर कहा और राठौर सर हिलाता हुआ वापस चला गया। कर्नल प्रकाश, हमें इस तरह बुलाने का क्या मकसद था? जैगर ने सपाट लहजे में कहा। मिशन के सिलसिले में ज़रूरी बातचीत करनी थी मिस्टर जैगर। हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान में सीक्रेट सर्विस फाल हो चुकी है। इमरान को किसी ने जाली वारदातों में मुलविस करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में वहाँ हालात तब्दील हो गए हैं। ऐसी सूरत में हमें खतरा महसूस हुआ है कि पहले की तरह फिर मिशन फेल ना हो जाए। कर्नल प्रकाश ने भी सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं, मिशन मुकम्मल करना रॉडर की ड्यूटी है। आप सिर्फ हमें माल सप्लाई करें, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। जैगर ने कदरे सख्त लहजे में कहा। आपके चीफ बॉस से सारी बात तफसील से तय हो चुकी है। आपको यहाँ बुलाने का मकसद इस बातचीत के नतीजे में नई सूरत हाल का तयन था। अब ये तय हुआ है कि माल ट्रकों के बजाय छोटी और तेज़ रफ्तार वैगनों में भेजा जाए, ताकि अगर चेकिंग भी हो जाए तो ये तेज़ रफ्तार वैगन असला समेत निकल जाने में कामयाब हो सके, वरना ट्रक इस कदर तेज़ रफ्तारी पैदा नहीं कर सकते। कर्नल प्रकाश ने जवाब दिया। लेकिन इस तरह एक तो वैगनों की तादाद बढ़ जाएगी और दूसरा वैगनों का ये कारवां फौरी तौर पर नज़रों में आ जाएगा। जैगर ने होंठ काटते हुए कहा। इस पहलू पर गौर कर लिया गया है। अक्सर ऐसा होता है कि नई वैगनें एक कारवां की सूरत में सड़कों पर मुसलसल सफ़र करती है। ये मंसूबा बनाया गया है कि माल को 50 नई वैगनों में फिट करके उन वैगनों को दारुल हुकूमत से गुजार कर ले जाया जाएगा। बाकी प्रोग्राम उसी तरह होगा, अलबत्ता जहाँ ट्रकों से माल उतार कर वैगनों में बदलना था, वहाँ उसी तरह उन्हीं पुरानी वैगनों में डाला जाएगा और ये नई वैगन्स वापस होकर इस पार्टी तक पहुँच जाएगी। कागजात बिल्कुल असल होंगे। असला वैगनों की फर्श की दूसरी तह में छुपाया जाएगा। इन वैगनों को अब एक खुसूसी जहाज़ के जरिए बंदरगाह पहुंचाया जाएगा, जहां से रॉडर ग्रुप इस पार्टी के नुमाइंदे के तौर उन्हें हासिल कर लेगा, बाकायदा क्लियरेंस कराकर, और फिर सड़क के जरिए उन्हें ले जाया जाएगा। खतरे की सूरत में जिस कदर वैगनें निकाली जा सकेंगी निकाली जाएगी। कर्नल प्रकाश ने कहा। अगर ये बात है तो फिर वैगनों को बंदरगाह से मालगाड़ी पर क्यों ना बुक करा दिया जाए, दारुल हुकूमत में भी हम उससे वसूल करें और फिर वहाँ इसे आगे सड़क के रास्ते ले जाएं। जैगर ने कहा। पहले इस बात पर गौर किया गया था, लेकिन उसमें एक मसला सामने आया था कि रेलवे के इतने सारे अमले को ख़रीदा नहीं जा सकता और ऐसा हो सकता है कि वैगनों को गाड़ी पर लाते हुए रास्ते और मैं वहाँ दारुल हुकूमत में उतारते वक्त रफ हैंडलिंग की वजह से असली की मौजूदगी का पता चल सकता है, इसलिए ऐसा रिस्क नहीं लिया जा सकता। कर्नल प्रकाश ने कहा। और वो जो पार्टी वैगनों को बुक कराएगी वो कहाँ की है? जैगर ने पूछा। पार्टी तो दारुल हुकूमत की है, लेकिन उसने वैगनें दरे टॉप से जुनूब मशरिक में वाक़ एक आइडियल फील्ड पर काम करने वाली कंपनी के लिए बुक कराई है। तमाम कागजात बिल्कुल दुरुस्त और असली होंगे। अगर कागजात की चेकिंग होगी तो वो बिल्कुल दुरुस्त पाए जाएंगे, उनमें से एक हुर्फ भी मशकूक ना होगा। कर्नल प्रकाश ने जवाब देते हुए कहा। हर वैगन में 2 ड्राइवर होंगे तो उसका मतलब है 100 अफराद तो ये हो जाएंगे और उनकी हिफाजत के लिए 10 कारों में 40 अफराद और होंगे। इस तरह 140 अफराद कम अज़ कम
हम चाहे ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम होगा, जयगर ने सोचते हुए कहा। हाँ, इतने अफराद तो लाजमन होने चाहिए। आपके ग्रुप में कितने अफराद हैं? कर्नल प्रकाश ने पूछा। यूँ तो हमारे ग्रुप के मेंबर की तादाद सैकड़ों से भी ऊपर है, लेकिन वो मुख्तलिफ मिशंस पर काम कर रहे हैं। मिशंस का इंचार्ज मैं हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 अफराद यहाँ हरकत में ला सकता हूँ, जयगर ने कहा। फिर बाकी अफराद का क्या करोगे? कर्नल प्रकाश ने परेशान होते हुए कहा। किसी मुकामी ग्रुप की मदद लेनी होगी, सिर्फ वैगनों की ड्राइविंग के लिए। हिफाजत के लिए तो हम 20 अफराद ही काफ़ी हैं। हमारे ग्रुप का एक एक फ़र्द 100 पर भारी है, जयगर ने कहा। नहीं, मुकामी ग्रुप वाला मसला गलत है। इस तरह मिशन लैग आउट हो जाएगा। कोई और इंतज़ाम करो, ऐसा इंतज़ाम जिसमें किसी मुकामी आदमी का कोई ताल्लुक ना हो, कर्नल प्रकाश ने कहा। कर्नल साहब, आप उनकी बातों को नहीं समझते। अगर तमाम वैगन ड्राइवर गैर मुल्की होंगे तो जाहिर है हर बात मशकूक हो जाएगी, जयगर ने कहा। हाँ, ये तो मसला है। फिर ऐसा है कि मैं अपने मुल्क से आदमी भेज दूँ, ड्राइविंग के लिए वो मुकामी अफराद ही दिखाई देंगे, कर्नल प्रकाश ने कहा। लेकिन अब आप इन आदमियों की गलती की वजह से मिशन नाकाम हो गया तो फिर हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे, जयगर ने सख्त लहजे में कहा। इस बात की आप फिक्र ना करें, हमारे आदमी ट्रेंड होंगे और उन्हें आपके मातहती में दे दिया जाएगा। वो आपके अहकामात के पाबंद होंगे, कर्नल प्रकाश ने सर हिलाते हुए कहा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, बताइए कब वैगनें हमारे चार्ज में आनी है और आपके आदमी कहाँ और कब पहुँचेंगे, जयगर ने रजामंद होते हुए कहा। वैगनें तुम्हें आज से 4 रोज़ बाद बंदरगाह से वसूल होंगी। वैगनें तैयार हो चुकी हैं। आज उन्हें करीबी मुल्क भेज दिया जाएगा, जहाँ से वो बाकायदा बहरी जहाज़ पर सवार होकर आज से 3 रोज़ बाद बंदरगाह पहुँच जाएंगी। कस्टम और क्लियरेंस में 1-2 रोज़ लग जाएगा। इस तरह आज से 4 रोज़ बाद वैगनें आपके चार्ज में होंगी। आपने बंदरगाह पे जाकर इंसाफ क्लियरिंग एंड फॉर्डरिंग एजेंट्स के दफ्तर में जाना है। वहाँ इनका मैनेजर होगा अल्ताफ़ इकबाल, वो सारा काम करेगा और वो हमारा आदमी है। आपने सिर्फ ये कागज़ उसे जाकर देना है। कोड ऑर्डर रहेगा, आप जाकर उसे अपना कार्ड भेजेंगे जिस पर आपका नाम टोनी रॉड लिखा होगा। वो आपको बुला लेगा और अल्ताफ़ डार के तौर पर कराएगा और फिर उसे ये कागज़ देंगे। आप इस तरह आपके और उसके नाम में रॉड मुकम्मल होगा। बाकी बातें वो आपसे ज़बानी तय कर लेगा। बिल्कुल भरोसे का आदमी है, आप उस पर मुकम्मल एतमाद करेंगे। वैगनों की डिलीवरी के साथ साथ वो आपको उस जगह ले जाएगा जहाँ हमारे आदमी ड्राइवरों की सूरत में मौजूद होंगे। उन सब के कागजात मुकम्मल होंगे और वो इस फर्म के मुलाजिम होंगे जो वैगन ख़रीद रहे हैं। उन सब का इंचार्ज भाकर नामी आदमी होगा। आपका राब्ता भाकर से रहेगा और भाकर बाकी आदमियों को संभाल लेगा। कर्नल प्रकाश ने तफसीलात बताने के साथ साथ दराज से एक सफ़ेद रंग का कागज़ निकाल कर जयगर की तरफ बढ़ा दिया। कागज़ पर किसी बेवा की तरफ से दरख्वास्त लिखी हुई थी जिसमें इमदाद की अपील की गई थी। आम सा कागज़ था। जयगर समझ गया था ये कोड होगा, इसलिए उसने उसे तय करके अपनी जेब में डाल लिया। आपके आदमी अपना असला साथ लेके आएंगे, जयगर ने कहा। हाँ, वो जदीद असले से होंगे, ऐसे असले से जो बज़ाहिर आम ड्राइवरों के रोज़मर्रा आलात के मुताबिक नज़र आएंगे और इसी तरह किसी को तलाशी के बावजूद इन पर शक ना होगा, कर्नल प्रकाश ने जवाब दिया। आपके आदमियों को मुकम्मल मिशन का इल्म है कि कहाँ जाना है और क्या करना है, जयगर ने पूछा। नहीं, उन्हें सिर्फ इतना मालूम होगा कि उन्हें ख़तरे की सूरत में क्या करना है। बाकी आप जितना मुनासिब समझें भाकर को बताएं। बहरहाल वो आपके मातहत होगा, कर्नल प्रकाश ने जवाब देते हुए कहा। पहले चेक पोस्टों के साथ जो मामला तय हुए थे वो ट्रकों के सिलसिले में थे, अब नई सूरत में क्या होगा, जयकर ने पूछा। हाँ, आपने अच्छा याद दिला है, आपके चीफ बॉस के साथ इस मसले पर बात हुई थी। हम किसी भी सूरत मुकामी आदमी सिवाय दर टॉप के इस मिशन के किसी तौर पर मुतालिक नहीं करना चाहते, इसलिए जिस आदमी ने चेक पोस्टों को डील करना था वो अब आपके साथ ना होगा। आम हालात में आपको इन चेक पोस्टों को क्रॉस करना है। आप कतईन बेफिक्र रहें, तमाम मिशन इस तरह तरतीब दिया गया है कि बगैर किसी ख़ास मुखबरी के किसी सूरत में भी किसी को शक ना होगा। हत्ता कि उस असले को भी ऐसे पैक किया गया है कि मशीनी आलात भी इसका पता ना चला सकेंगे। वैसे मुझे आपको पूरे मिशन में कहीं भी उंगली हिलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी किसी खुसूसी ख़तरे की सूरत में। बहरहाल आप जो मुनासिब समझे इक़दाम करें, ये आपका काम है, कर्नल प्रकाश ने जवाब दिया। ओके ठीक है, अब इजाज़त, जयकर ने जवाब देते हुए कहा। मैं कैप्टन राठौर को बुलाता हूँ, वो आपको स्टॉप पर छोड़ आएगा, कर्नल प्रकाश ने कहा और मेज़ के किनारे किसी बटन को उंगली से दबा दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और कैप्टन राठौर अंदर दाखिल हुआ। मेहमानों को स्टॉप पर छोड़ा, कर्नल प्रकाश ने तहकुमाना लहजे में कैप्टन राठौर से मुखातिब होकर कहा।
कहा। यस सर, कैप्टन राठौर ने मौदवाना लहजे में कहा और फिर जयगर और बांटी कंडर प्रकाश से मुसाफा करके कमरे से बाहर आ गए। चंद लम्हों बाद कार वापस जा रही थी। आप दूसरी तरफ बेहद मोहतात रहें, वहाँ फौजी गश्त जारी है, कैप्टन राठौर ने कार चलाते हुए जयगर से मुखातिब होकर कहा। हमें मालूम है, जयगर ने मुख्तसर से जवाब दिया और कैप्टन राठौर ने सर हिला दिया। इमरान ने मुजरिम तंजीमों की कैटलॉग देखते हुए जैसे ही एक सफ़ा पलटा वो चौंक पड़ा। उसकी नज़र सफ़े के दौरान में बनी हुई तस्वीरों पर जम गई। ये बिल्कुल वही तस्वीर थी जिसे चौकीदार ने बताई थी। कुछ पता चला? सामने बैठे हुए ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर पूछा। हाँ, ये एक बैनुल अक़वामी तंजीम रॉडर का मखसूस निशान है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। वो सफ़े पर दी गई तफसीलात पढ़ रहा था। रॉडर, ये कौन सी तंजीम है? ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होते हुए कहा। तफसीलात तो यही नहीं दी गई, सिर्फ इतना बताया गया था कि ये तंजीम ज़्यादातर असले की स्मगलिंग में मुलविस पाई गई है। कांगो के बागियों को असला की सप्लाई के दौरान इस तंजीम का नाम पहली बार सुनने में आया था। उसके कुछ अफराद पकड़े गए थे लेकिन फिर उन्हें हलाक कर दिया गया। उन अफराद से उन निशान का पता चला था और बस। इमरान ने सफ़े पर दी गई तफसीलात पढ़ते हुए कहा। असले की स्मगलिंग? लेकिन इस किस्म की स्मगलिंग के लिए किसी बैनुल अक़वामी तंजीम के आने का तो कोई जवाज़ ही नहीं बनता। यहाँ तो ना कोई बगावत हो रही है और ना कोई जंग वगैरह, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हो सकता है असले की स्मगलिंग का चक्कर ना हो, कोई और सिलसिला हो, लेकिन हालात बताते हैं कि सिलसिला असले का ही हो सकता है, इमरान ने कैटलॉग बंद करते हुए कहा। कैसे हालात? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। चंद माह कबल असला स्मगलर होते हुए पकड़ा गया था। ये इंतहाई जदीद तरीन असला था और इसमें एक मुकामी गुंडा रामा भी मुलविस था जो पुलिस की हिरासत में से फरार हो गया। अब यही गुंडा मुझे उलझाने के लिए जो वारदातें कैफ़े मालाबार और होटल ताज में हुई उनमें मुलविस था और नशीमन आबाद वाली कोठी से जो लाशें मिली हैं उनमें भी ये रामा भी हलाक किया गया था और उन्हें जिस पार्टी ने हलाक किया है उसकी कार पर रॉड्स का निशान मौजूद था। इस सारी सूरत हाल से तो यही अंदाज़ा होता है कि अब भी वही असले की स्मगलिंग का ही चक्कर होगा और मुझे उलझाने की बात भी अब समझ में आती है। उनका पहला मिशन नाकाम होने की बिना पर मेरी साथ बनी हुई थी और मेरा नाम ही सामने आया था। चुनांचे हो सकता है कि रॉड ने मेरे मुतालिक मालूमात इकट्ठी कर रखी हो और फिर उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है कि मुझे किसी वारदात में उलझा दिया जाए ताकि मैं उस दौरान असली की स्मगलिंग के आड़े ना आऊँ। इमरान ने सारे हालात का तफसीली जायज़ा लेते हुए कहा। आपका तज्ज़िया बिल्कुल दुरुस्त है इमरान साहब, यकीनन यही मसला होगा, लेकिन ये असला पहुँचाया कहाँ जाना था? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, ये बात वाकई सोचने की है, बज़ाहिर तो ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आती, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। इमरान साहब, मेरे जहन में एक बात आती है कि कहीं ये असला शुमाली मगरबी सरहद पर कबाइलों को तो नहीं पहुँचाना जाता? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। शुमाली मगरबी सरहद यानी द रेड टॉप, लेकिन वहाँ तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। ये दुरुस्त है कि दूसरी तरफ रूस है और हमारे हमसाया मुल्क बाटिस्तान में जंग हो रही है और बाटिस्तान के हुर्रियत पसंद रूसिया के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी दूसरी तरफ सरहदी इलाके में तो बिल्कुल अमन है। और फिर ये असला अगर बाटिस्तान के हुर्रियत पसंद को पहुंचाया जाता तो इसलिए हमारे मुल्क का रास्ता तो किसी तौर पर भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसके लिए तो ऊपर बहुत से रास्ते हो सकते हैं। मुझे उलझाने का मतलब तो ये है कि असला बहरहाल वो दारुल हुकूमत से गुजार कर ले जाना चाहते हैं। अब देखना ही है कि ये असला कहाँ से लाकर कहाँ पहुँचाया जा सकता है, जिसके लिए उसे दारुल हुकूमत से गुजरना ज़रूरी हो। ज़रा नक्शा निकालना पाकिशिया का, इमरान ने कहा और ब्लैक ज़ीरो सर हिलाता हुआ उठा और एक अलमारी से उसने एक बड़ा नक्शा निकालकर मेज़ पर फैला दिया। इमरान काफ़ी देर तक नक्शे को गौर से देखता रहा और ब्लैक ज़ीरो भी नक्शे की तरफ मुतवज्जा रहा। असला दारुल हुकूमत के ज़रिए या तो सड़क के रास्ते लाया जा सकता है या ट्रेन के रास्ते, और अगर तुम्हारी बात पर गौर किया जाए ये असला फ़र्ज़ किया द रेड टॉप पर पहुंचाता है तो फिर वहां तक रेलवे नहीं जाती। फिर अगर रेलवे पर आएगा तो ये दारुल हुकूमत उतरेगा और यहाँ से सड़क के रास्ते जाएगा या फिर बराह रास्त सड़क के ज़रिए जाएगा। रेलवे के रास्ते वाला मसला तो मुमकिन नहीं, क्योंकि रेलवे में सफ़र के दौरान ये कहीं भी चेक हो सकता है। मुजरिम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। अब यही सूरत है कि इसे सड़क के रास्ते लाया जाए, इमरान ने कहा। लेकिन सड़क के रास्ते तो जगह जगह खुसूसी चेक पोस्टें मौजूद हैं, कैसे असला स्मगल होगा? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, यही तो सही है, लेकिन ये भी तो हो सकता है देखो कि लाने वाले अगर बैनुल अक़वामी मुजरिम है तो फिर यकीनन उसे रास्ते इख्तियार करेंगे या ऐसे तरीका इख्तियार करेंगे जिससे चेक पोस्टें साफ़ हो जाएं। दारुल हुकूमत का महल वक़ू ऐसा है कि उसमें गुजरे बगैर वो उसे साइड से नहीं ले जा सकते, इसलिए उन्हें लाजमन दारुल हुकूमत को क्रॉस करना ही पड़ेगा, इमरान ने कहा। तो फिर ऐसा हो सकता है कि हम सीक्रेट सर्विस के
में इमरान की दारुलहुकूमत की चेक पोस्टों पर खुसूसी ड्यूटी लगा दें। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, यह भी तो अभी मकरूज़े पर है कि क्या मालूम मुजरिमों का असल मिशन क्या है। जब तक कोई मखसूस सबूत ना मिले इस वक्त तक यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं मुजरिमों का मिशन उससे यकसर मुख्तलिफ हो। इमरान ने गुस्से की पुश्त कमर लगाते हुए कहा। उसकी फराक पेशानी पर उलझनों की लकीरें मौजूद थीं। ब्लैक ज़ीरो भी खामोश हो गया क्योंकि बहरहाल इमरान की बात दुरुस्त थी। अभी वो दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे कि मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। कौन सी रियासत का सुल्तान? दुनिया में तो बेशुमार रियासतें हैं और लातादाद सुल्तान हैं। वैसे एक सिगरेट का नाम भी सुल्तान है, इमरान ने अपने असल लहजे में कहा और दूसरी तरफ से सर सुल्तान हंस पड़े। इमरान बेटे, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि कैफ़े मालाबार और होटल ताज में तुम्हारे मेकअप में वारदातें करने वाले मुजरिमों का पता चल गया है। उन्हें किसी ने नशीमनाबाद के एक कोठी में कत्ल किया है। गो उनके चेहरे मसक करने की कोशिश की गई, लेकिन तुम्हारे मेकअप में मुजरिम का मेकअप मरते वक्त तुम्हारा ही था। इस तरह तुम पर सारा इल्ज़ाम गलत हो गया। सर रहमान भी अपनी गलती पर खासे शर्मिंदा हैं, सर सुल्तान ने चहकती हुई आवाज़ में कहा। खुदा का शुक्र है कि डैडी को भी ज़िंदगी में शर्मिंदा होने का मौका मिल गया। वैसे आप उनकी ऐसी हालत में फ़ोटो खींच लेते तो मैं भी फ़ोटो सुपर फैयाज़ के दफ्तर में लटकवा देता। यकीन कीजिए बेचारे का रोज़ाना सैरकुन बढ़ता रहता, इमरान ने कहा। और सर सुल्तान जवाब में कहका मारकर हंस पड़े। उस गरीब का तो अब सैरकुन खुश्क हो रहा होगा। सर रहमान को फैयाज़ पर इंतहाई सख्त गुस्सा था कि उसके बजाय एक आम पुलिस इंस्पेक्टर ने सारा केस हल कर लिया। वो तो मुझे कह रहे थे कि मैं सुपर फैयाज़ को मुअत्तल करके उस इंस्पेक्टर को सुपरिटेंडेंट बना दूंगा, सर सुल्तान ने कहा। पुलिस के इंस्पेक्टर ने, अच्छा वो कौन इंस्पेक्टर है जो इस कदर ज़हीन है? इमरान ने मसनूई हैरत का इजहार करते हुए कहा। इंस्पेक्टर गौरी है, थाना नशीमनाबाद का इंचार्ज। कहीं तुम तो इसे सीक्रेट सर्विस में शामिल नहीं करना चाहते? सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं, वरना वो किसी और नकली इमरान की तरह असल इमरान का मेकअप उतार खड़े होगा, इमरान ने कहा। और सर सुल्तान एक बार फिर कहका लगाकर हंस पड़े और शायद इमरान पर इल्ज़ाम साफ़ होने की बिना पर बेहद खुश थे। अब उन्हें क्या मालूम था कि इंस्पेक्टर गौरी तो बस गौरी ही करता रहता है। अगर इमरान वहाँ ना पहुँचता तो आप इंस्पेक्टर गौरी के ज़िम्मे लगाए उनकी वारदातों का पस मंज़र की तलाश करते। आखिर कोई तवज्जो होगी ही, इमरान ने कहा। इंस्पेक्टर गौरी नहीं, अब तो तुम्हारा अपना काम है। इस गरीब के बस में जो था उसने कर दिया, इतना ही काफ़ी है। अच्छा, गुड बाय, सर सुल्तान ने तेज़ लहजे में कहा और साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। इमरान समझ गया था कि उन्हें कहीं और से कॉल आई होगी, इसलिए वो इस कदर जल्द रब्ता ख़त्म कर गए। इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर क्रैडल पर रखा ही था कि टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। इमरान ने चौंक कर दोबारा रिसीवर उठा लिया। अपनी मौजूदगी में वो X2 के फ़ोन खुद ही सुनना करता था। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। जोलिया स्पीकिंग। सर, दूसरी तरफ जोलिया की मौदबाना आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान ने इस तरह सख्त लहजे में कहा। सर, इमरान ने जिस कार की तलाशी के लिए कहा था वो कार तनवीर ने ढूंढ ली है। वो कार अलबेला के स्क्वायर की कोठी नंबर 99 मौजूद है। तनवीर ने अभी अभी इत्तला दी है, जोलिया ने रिपोर्ट देते हुए कहा। कैसे ढूंढी उसने? कोठी के अंदर जाकर, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। नो सर, वो वहाँ से गुजर रहा था कि कार उसे नज़र आ गई। इस वक्त वो कार मुड़कर उस कोठी में दाखिल हो रही थी, जोलिया ने कहा। ठीक है, उसे कहो कि वो वहाँ की निगरानी करे। चौहान नुमानी और सिद्दी को भी वहीं भिजवा दो। मैं इमरान को भी वहाँ भिजवा रहा हूँ, बाकी काम वो खुद करेगा, इमरान ने कहा। सर, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं वहाँ जाऊँ? जोलिया ने झिझकते झिझकते पूछा। तुम्हारे सफदर और कैप्टन शकील के लिए और काम है। तुम तीनों दारुलहुकूमत के दोनों अतराफ में खुसूसी चेक पोस्टों पर जाकर वहाँ उस बात का पता चलाओ कि उसका तरीक़ाकार क्या है और वो क्या क्या चीज़ चेक करते हैं और किस तरह। सिर्फ उनके तरीक़ाकार के मुतालिक मालूमात हासिल करनी है, इमरान ने कहा। ठीक है सर, मैं ये मालूमात हासिल करके आपको तफसीली रिपोर्ट दे दूँगी, जोलिया ने जवाब दिया। और ओके, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। मैं उस कार के मुतालिकिन का पता करूं, मुझे यकीन है कि कोई ना कोई क्लेव मिल जाएगा, इमरान ने रिसीवर रखकर कुर्सी से उठते हुए कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ जाने के बजाय मेकअप रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया तो वो अपना चेहरा और लिबास बदल चुका था। ज़ाहिर, तुम ऐसा करो, रेलवे हेडक्वार्टर चले जाओ और वहाँ से ऐसी मालूमात इकट्ठी करो कि कहीं से कोई ऐसा माल बुक कराया गया हो जिसे असले के स्मगलिंग के सिलसिले में मशकूक समझा जाता हो, इमरान ने मेकअप रूम से बाहर आते हुए कहा।
मसलन किस किस्म का माल? ब्लैक ज़ीरो ने उठते हुए पूछा। कसीर तादाद में बड़ी पेटियां हो सकती हैं, बड़े संदूक हो सकते हैं, ऐसे ही असला स्मगल हो सकता है। और कैसे होगा? इमरान ने कहा। लेकिन इमरान साहब, पिछली बार जो असला पकड़ा गया था वो तो ट्रकों में छुपाया गया था, गले की बोरियों के नीचे। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, सड़कों के ज़रिए नकलो हरकत इस तरह हो सकती है, लेकिन रेलवे के ज़रिए तो इस तरह नहीं आ सकता। ख़ास तौर पर ऐसी किसी मशीनरी को चेक करना जैसे बड़ी बड़ी पेटियों में बुक कर लिया गया हो। वो तुम्हें बिल्टियाँ चेक करके ही मालूम हो जाएगा। बज़ाहिर इन पेटियों में मशीनरी दिखाई जा सकती है, जबकि उनके अंदर असला भी हो सकता है। इमरान ने उसे समझाया। ठीक है, मैं समझ गया, मैं मालूम कर लूँगा। ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाते हुए कहा। ये ख्याल रखना किसी को शक ना हो सकता है कि मुजरिमों को उन लोगों को ख़रीद रखा हो, या फिर मुजरिमों का कोई आदमी निगरानी कर रहा हो। अगर ऐसा कोई मशकूक आदमी नज़र आए तो फिर उसे अलहदा चेक किया जा सकता है, इमरान ने कहा, और तेज़ तेज़ कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कार कासी तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ी जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था, जिसकी कनपटियों के बाल सफ़ेद थे। लिबास रखरखाव और चेहरे मोहरे से वो खासा खाता पीता लग रहा था। उसके साथ वाली सीट पर जैगर बैठा हुआ था, जबकि पिछली सीट पर बांटी अकेला बैठा हुआ था। कार शहर की हदूद से निकलकर मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। आपने इन सबको इकट्ठा कर रखा हुआ है अल्ताफ़ साहब, जैगर ने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा। ओ नहीं मिस्टर टोनी, मुझे तो अभी थोड़ी देर पहले इत्तला दी गई है कि मैं आपको लेकर मखसूस स्टॉप पर पहुंचूं। वहां आपकी मुलाकात सिर्फ भाकर से होगी। ये भाकर को मालूम होगा कि बाकी लोग कहाँ हैं, अल्ताफ़ ने जवाब दिया। और ये अल्ताफ़ क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट्स का मैनेजर अल्ताफ़ इकबाल था। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। वैसे वैगनों की डिलीवरी कब और किस वक्त मुतवक्का है? जैगर ने पूछा। अभी 4 घंटे बाद माल हमें मिल जाएगा। रात को मैंने क्लियर करा दिया था, अल्ताफ़ ने कहा। कोई मसला तो पैदा नहीं हुआ? जैगर ने कहा। मेरे होते हुए कभी कोई मसला पैदा नहीं हो सकता मिस्टर टोनी, अल्ताफ़ के हाथ बहुत लंबे हैं, अल्ताफ़ ने बड़े फ़क्री अंदाज में कहा। कार सड़क के किनारे मौजूद एक बड़ी इमारत के कंपाउंड में मुड़ गई, और फिर कार रुकते ही वो तीनों कार से बाहर आ गए। यूँ कई क्लब था, वहाँ बारूदी वेटर नज़र आ रहे थे और खासे खुशपोश लोग इधर उधर बिखरे हुए थे। अल्ताफ़ उन्हें लिए इमारत के अंदर दाखिल हुआ, और फिर एक कमरे में पहुंचकर उसने उन्हें बैठने के लिए कहा। यह सिटिंग रूम था, इसमें कुर्सियाँ पड़ी हुई थी और कोई आदमी ना था। आप तशरीफ़ रखें, मैं मिस्टर बाकर का पता करके उन्हें ले आता हूँ, अल्ताफ़ ने कहा। वो वापस चला गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और अल्ताफ़ एक लंबे तड़ंगे नौजवान के साथ अंदर दाखिल हुआ, जिसने मुकामी लिबास पहना हुआ था। सर पर ड्राइवरों जैसी मखसूस टोपी थी और कंधे पर एक पुरानी सी शॉल थी। वो चेहरे मोहरे से और लिबास से वाकई ड्राइवर ही लग रहा था और मुकामी था। मिस्टर बांटी और मिस्टर टोनी, अल्ताफ़ ने कहा। ठीक है मिस्टर अल्ताफ़, अब आप जा सकते हैं, जैगर ने कहा। मैं बाहर मौजूद रहूंगा ताकि आप लोगों को वापस ले जा सकूं। आप बातचीत कर लें, अल्ताफ़ ने सर हिलाते हुए कहा और बाहर चला गया। ये जगह बातचीत के लिए महफूज है, जैगर ने इधर उधर देखते हुए कहा। नहीं या नहीं, आइए मेरे साथ, भाकर ने कहा। और वो तीनों कमरे से निकलकर एक दूसरे के पीछे चलते हुए इमारत के अगली तरफ गए, और फिर इधर मौजूद एक वसी मैदान के आखिरी हिस्से में पहुंच गए। वहाँ कुर्सियाँ तो नहीं थी, इसलिए वो वहाँ खड़े हो गए। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि मैंने एक और साहब को मिलना है, बाकर ने यहाँ पहुँचते ही सपाट लहजे में कहा। हाँ, मेरा नाम जैगर है, कोड ऑर्डर है, मैं मिशन का इंचार्ज हूँ। अल्ताफ़ के लिए मैं टोनी था, जैकर ने कहा। ओह अच्छा, मैं समझ गया, सॉरी सर। ठीक है सर, आप मुझे हिदायत दीजिए, भाकर से इस बार मौदबाना लहजे में कहा। आपके आदमी पहुँच गए? जैकर ने पूछा। जी हाँ, सिर्फ पहुँच गए बल्कि मिशन के लिए भी तैयार हैं, भाकर ने जवाब दिया। कितने अफराद हैं? जैकर ने पूछा। मुझ समेत 100 आदमी हैं, हमने उन्हें मुख्तलिफ मुकामात पर ठहराया हुआ है, भाकर ने जवाब दिया। कागजात वगैरह और हिफाजती असला? जैगर से पूछा। कागजात हमने अल्ताफ़ साहब को पहुंचा दिए हैं ताकि कवायफ का अंदराज हो सके, और हिफाजती असला मौजूद है, भाकर ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, आप लोग डिलीवरी हाउस पर खुद पहुँच कर वैगनों का चार्ज संभाल लें, हम आपसे दूर रहेंगे। हम इस कारवां में आपकी हिफाजत के लिए आगे पीछे रहेंगे, मेरा आपसे रब्ता रहेगा और वक्तन वक्तन हिदायत देता रहूँगा। ये ट्रांसमीटर आप रख लें। जैगर ने कोट की अंदरूनी जेब से एक छोटा सा सिगरेट केस निकालकर भाकर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इसका इस्तेमाल? भाकर ने सिगरेट केस को अपनी जेब में मुंतकिल करते हुए कहा। अब आप गौर से सुन लें, हमने यहाँ से वैगनें लेकर दारुल हुकूमत के दरमियान से गुजर कर शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ना है। दारुल हुकूमत से निकलने के बाद आपको मज़ीद हिदायत दूंगा। एक बात का ख्याल रखें, अगर हमें कोई शदीद तरीन ख़तरा पेश आ सकता है तो वो दारुल हुकूमत क्रॉस करते हुए या उसके बाद।
اس لیے وہاں آپ کو سب سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ چیک پوسٹوں پر آپ نے تمام کارروائی روٹین کے مطابق کرانی ہے۔ خطرے کی صورت میں جس قدر ویگنیں آپ بچا سکتے ہیں بچا لیجیے گا۔ بہرحال خطرے کی صورت میں ہم آپ کی حفاظت کے لیے موجود رہیں گے اور باقی ہدایات بھی۔ جیگر نے کہا، میں سمجھ گیا، آپ بے فکر رہیں، ہماری طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہ ہوگی۔ بھاکر نے بڑے اعتماد سے کہا، اوکے، ہم آپ کے قریب نہیں آئیں گے، اب آپ کا اور ہمارا رابطہ صرف ٹرانسمیٹر پر ہوگا، جیگر نے کہا، اور پھر وہ اس سے مصافحہ کر کے واپس مڑ گئے۔ عمارت کے کمپاؤنڈ میں کار کی سیٹ پر الطاف موجود تھا۔ جیگر اور بانٹی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور الطاف نے کار آگے بڑھا دی۔ آپ ہمیں وہ جگہ دکھائیں جہاں سے ویگنوں نے روڈ پر آنا ہے، اس کے بعد آپ فارغ ہیں، جیگر نے الطاف سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، الطاف نے جواب دیا اور کار تیزی سے واپس بندرگاہ کی طرف دوڑ گئی۔ بندرگاہ کے دفاتر والے حصے سے گزر کر کار دائیں طرف والی سڑک پر ایک چوکی موجود تھی جس کے ساتھ ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر ڈیلیوری ہاؤس کے الفاظ صاف پڑھے جا رہے تھے۔ الطاف نے کار چوکی کی طرف جا کر روک دی اور خود نیچے اتر کر چوکی کی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ چوکی پر موجود ہر آدمی نے اس سے اس طرح سلام دعا کی جیسے ان سب کے آپس میں گہرے تعلقات ہوں۔ وہ کچھ دیر تک عمارت کے اندر رہا اور پھر واپس آ گیا۔ ڈیلیوری 2 گھنٹے بعد ہو جائے گی، تمام کاغذات مکمل ہو چکے ہیں، چیکنگ وغیرہ سب ہو چکی ہے، اس راستے سے ویگنیں باہر آئیں گی، الطاف نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب آپ ہمیں بندرگاہ پر چھوڑ دیں، جیگر نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور الطاف نے کار واپس موڑ دی اور پھر بندرگاہ پہ پہنچ کر اس نے کار روک دی۔ جیگر اور بانٹی دونوں اسے گڈ بائی کہہ کر نیچے اترے اور سیدھے جنرل پارکنگ کی طرف بڑھ گئے جہاں ان کی اپنی کار موجود تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ بانٹی نے پارکنگ کی طرف بڑھتے ہوئے جیگر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یہاں سے ہم کارواں کے ساتھ جائیں گے، دارالحکومت تک تو ویسے ہی بھی کوئی خطرہ نہیں، دارالحکومت کی پہلی چوکی سے پہلے ہمارا گروپ موجود ہوگا، وہاں سے ہم اس کی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ فی الحال تم ہوٹل چلو، میں دارالحکومت میں جیری سے بات کر کے پروگرام فائنل کر دوں، جیگر نے کار کے قریب پہنچتے ہوئے کہا اور بانٹی نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار بائیں طرف جانے والی سڑک پر مڑ گئی جہاں قریبی ہوٹل تھا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ دروازہ بند کرو، جیگر نے کمرے میں پہنچتے ہی کہا اور بانٹی نے مڑ کر دروازہ لاک کر دیا۔ جیگر نے الماری کھول کر اس میں سے ایک بریف کیس نکالا اور پھر وہ بریف کیس اٹھائے ملکہ باتھ روم میں چلا گیا۔ اس نے شاور کھول دیا تاکہ ٹرانسمیٹر کی آواز پانی کے شور میں مدھم ہو جائے اور پھر بریف کیس کھول کر اس میں سے اس نے ایسا ہی سگریٹ کیس نکالا۔ بریف کیس ایک طرف رکھ کر اس نے سگریٹ کیس کھولا، اس میں اعلیٰ کوالٹی کی سگریٹ ایک قطار کی صورت میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے اس میں سے ایک سگریٹ کے اوپر اٹھا کر اس کا سراغ بدل کر دوبارہ وہیں جما دیا اور سگریٹ کیس بند کر کے اس کے ساتھ لائٹر جلا دیا۔ لائٹر میں سے شعلہ نکلا تو اسے پھونک مار کر بجھا دیا۔ شعلہ بجھتے ہی سوراخ میں ٹرانسمیٹر کی مخصوص آواز سنائی دی، ہیلو ہیلو جیکر کالنگ اوور۔ جیکر نے بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا، یس جیری آن دی لائن اوور۔ چند لمحوں بعد سوراخ میں سے مدھم سی آواز سنائی دی، جیری دارالحکومت کی کیا رپورٹ ہے؟ اوور، جیکر نے پوچھا۔ اوکے باس، ہم سب آپ کی کال کے منتظر ہیں۔ اوور، جیری نے جواب دیا۔ اچھا تو سنو، تم کل گروپ لے کر سپیر دارالحکومت کی پہلی چوکی سے 20 میل پہلے قصبہ ساجد پور کے قریب موجود رہنا، ہم کل سپیر وہاں پہنچیں گے۔ اب ٹرکوں کے بجائے ویگنوں کے ذریعے مال آ رہا ہے، ٹرکوں والا منصوبہ منسوخ کر دیا گیا ہے لیکن ابھی کسی کو اس بارے میں نہ بتانا، بس تیار رہنا۔ اوور، جیگر نے کہا۔ ٹھیک ہے باس۔ اوور، جیری نے جواب دیا اور جیگر نے اوور اینڈ آل کہہ کر دوبارہ لائٹر جلا دیا۔ اس طرح رابطہ ختم ہو گیا اور جیگر نے مطمئن انداز میں سگریٹ کیس کو دوبارہ بریف کیس میں رکھا اور شاور بند کر کے وہ بریف کیس اٹھائے باتھ روم سے باہر آ گیا۔ عمران نے اپنی کار البیلا اسکوائر کے پہلے چوک کے پاس بنے ہوئے کیفے کے سائڈ پر روکی اور خود نیچے اتر آیا۔ چند لمحے وہ کار کے قریب کھڑا کالونی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندازے کے مطابق کوٹھی نمبر 99 اگلے چوک سے ذرا پہلے ہونی چاہیے تھی، اس لیے اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ویسی چہل قدمی کرتا ہوا جا رہا ہو۔ دوسرے چوک سے پہلے اس نے ایک سائڈ پر چوہان کو ایک بینچ پر بیٹھے دیکھا۔ چوہان رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا۔ چوہان نے ایک نظر اٹھا کر عمران کی طرف دیکھا اور وہ دوبارہ رسالہ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس قدر فحش رسالہ پڑھنے کے لیے پبلک جگہ موزوں نہیں ہوتی، عمران نے اس کے قریب جا کر اپنے اصل لہجے میں کہا اور چوہان چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران صاحب آپ؟ میں تو بالکل ہی نہیں پہچانا، بالکل نیا میک اپ کیا ہے، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یار میں نے سوچا کہ چلو شکل بدل لو، شاید کسی کو اس شکل پر ہی رحم آ جائے، ورنہ پرانی شکل پر تو کوئی لڑکی نظر بھی نہیں ڈالتی، عمران نے بڑی سنجیدہ لہجے میں کہا اور چوہان بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن اس شکل پر تو کوئی بیوہ ہی رچ بس سکتی ہے، نوجوان لڑکی تو انکل ہی کہیں گے، چوہان نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو
کچھ کہا تو صحیح۔ ہاں تو تم بتاؤ کیا کہتے ہو، انکل یا ڈیڈی؟ عمران نے کہا۔ میں تو آپ کو عمران صاحب ہی کہوں گا۔ رپورٹ یہ ہے کہ تنویر اور صدیقی کوٹھی کی دوسری طرف موجود ہیں، نعمانی عقب میں ہے اور یہاں میں ہوں۔ کوٹھی سے نہ کوئی نکلا ہے اور نہ گیا ہے، چوہان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا صحیح ہے، تم یہیں رکو، اگر کوئی آ جائے تو ان کی نگرانی کرنا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ چوہان دوبارہ بینچ پر بیٹھ کر رسالہ پڑھنے لگا۔ کوٹھی کے سامنے سے گزرتے ہوئے عمران نے ایک بار پھر بھرپور نظر ڈال کر اس کا بغور جائزہ لیا۔ کوٹھی خاصی بڑی تھی، اس کا پھاٹک بند تھا، کوٹھی کے گیٹ نمبر لکھا ہوا تھا جو صاف نظر آ رہا تھا، کوئی نیم پلیٹ وغیرہ موجود نہ تھی۔ عمران کوٹھی کو دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے تنویر کو ایک کار کی طرف کھڑا دیکھا۔ تنویر پچھلی سیٹ پر اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو، لیکن اس کا چہرہ کوٹھی کی طرف تھا۔ عمران بڑے اطمینان سے قدم بڑھاتا ہوا کار کی طرف بڑھ گیا۔ اے مسٹر، سامنے والی کوٹھی میں کیا خوبصورت لڑکی رہتی ہے جو یہاں اس طرح مورچہ جمائے پڑے ہو، عمران نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا۔ جاؤ جاؤ بڑے میاں، اپنا راستہ ناپو ورنہ تمہاری کمزور سی گردن دب بھی سکتی ہے، تنویر نے ویسے ہی لیٹے لیٹے اسے جھاڑ دیتے ہوئے کہا۔ واہ، زبان تو بڑی با محاورہ ہے، راستہ ناپنا اور گردن دبانا گرامر کے الفاظ سے بالکل درست ہے۔ جیتے رہو صاحبزادے، عمران نے کہا اور آخری الفاظ میں اس نے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ او تم عمران، تنویر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ لیٹے رہو، کھانا کھانے کے بعد قیلولہ ضروری کرنا چاہیے، اس سے صحت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ یہاں سے کوئی نکلے تب نہ لیٹے رہنا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ آگے جا کر وہ گھوم کر کوٹھی کے عقب کی طرف آ گیا۔ کوٹھی کے عقبی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی سی سڑک تھی جس کی سائڈوں میں اونچی اونچی گھاس کی باڑ تھی۔ ارے بھائی، یہاں گھاس میں سنا ہے ہوائی جہاز ہوتے ہیں، یورپ والے لوہے کے جہاز بناتے ہیں جبکہ ہم گھاس والے ہوائی جہاز پر گزارا کر لیتے ہیں، عمران نے زور زور سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لہجہ اس کا اپنا تھا۔ عمران صاحب، میں تو پہچانتا ہی نہیں تھا، یہ کیسا میک اپ آپ نے کر لیا ہے بوڑھوں جیسا، ایک سائڈ سے نعمانی کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی، اور پھر نعمانی ایک کوڑے کے ڈرم کی آڑ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ یار میں نے سوچا اتنا عرصہ ہو گیا جوان بنے ہوئے کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا، اس لیے چلو اصل حالت میں آ کر دیکھ لیتے ہیں، عمران نے خالصتاً بوڑھوں کے انداز سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ آج آپ پر گھاس کا دورہ پڑا ہوا ہے، گھاس ڈالنا، گھاس کا ہوائی جہاز، کہیں واقعی گھاس تو نہیں کھا گئے؟ نعمانی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اپنے اپنے تجربے کی بات ہے، کھانے والا تجربہ تمہارا ہوگا، میں تو اس سبز رنگ کے کیڑے کو تلاش کر رہا ہوں جو اڑتا ہے اور گھاس اس کا رن وے ہوتا ہے، اسے گھاس کا ہوائی جہاز کہتے ہیں، گراس ایروپلین، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں واقعی، ہم بچپن میں اسے پکڑ کر اڑا دیا کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ ہم پائلٹ بن گئے ہیں، نعمانی نے ہنس کر کہا۔ اچھا سنا ادھر کا حال، کسی محترمہ نے لفٹ دی ہو؟ عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ محترمہ چھوڑ، محترم میں کوئی نظر نہیں آیا، بس خاموشی ہے، نعمانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ خاموشی تو آدھی رضامندی ہوتی ہے اور سالی آدھی بیوی کہلاتی ہے، چلو اس بڑھاپے میں آدھی پر ہی گزارا کر لیتے ہیں، لیکن شکل تو نظر آئے کیسی ہے، اس لیے میرا خیال ہے اندر چل کر رونمائی کریں، عمران نے کہا۔ مطلب ہے اندر داخل ہو جائے؟ نعمانی نے مسکرا کر کہا۔ واہ، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، بڑی جلدی سمجھ گئے مطلب، عمران نے کہا، اور نعمانی نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ واہ، یہ تم نے بڑا اچھا کیا، ورنہ اس بڑھاپے میں اتنی اونچی دیوار پھلانگنا مشکل ہو جاتا ہے، عمران نے کہا اور اس چھوٹے دروازے کی طرف بڑھ گیا جو کوٹھی کے عقب میں تھا۔ لوہے کا دروازہ دوسری طرف سے بند تھا، نعمانی نے آگے بڑھ کر اس کے ایک پٹ کو دبایا تو وہ خاصا پیچھے ہٹ گیا۔ درمیانی خلا میں انگلیاں ڈال کر نعمانی نے بڑی آسانی سے اندر لگی ہوئی کنڈی کھول دی۔ اب محتاط رہنا، عمران نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور پھر آہستہ سے اس نے دروازے کو کھولا اور دوسری طرف جھانکا۔ یہ کوٹھی کا عقبی لان ہے، لیکن اس طرف موجود کچھ گھاس اور جھاڑ جھنکار بنا رہتا ہے کہ ادھر کوئی توجہ ہی نہیں دی جاتی، عمران آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا۔ پچھلی طرف پانی اور گندگی ہوا کی نکاسی کے بڑے بڑے پائپ چھت تک چلے گئے تھے، عمران نے مڑ کر نعمانی کو اشارہ کیا اور وہ پھر آگے بڑھ کر وہ کسی بندر جیسی پھرتی سے ایک پائپ پر چڑھتا گیا۔ نعمانی ہاتھ میں ریوالور پکڑے زخمی چیتے کے سے انداز میں نیچے کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا جب عمران چھت پر پہنچ گیا۔ چھت سے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی اور وہ دونوں احتیاط سے چلتے ہوئے نیچے اترے اور پھر درمیانی منزل کی راہداری میں پہنچ کر آگے بڑھ گئے۔ اس راہداری میں سب سے نچلی منزل کے کمروں کے بڑے بڑے روشن دان تھے، ایک روشن دان سے لائٹ باہر کو آ رہی تھی، عمران نے آگے بڑھ کر احتیاط سے اندر جھانکا تو ایک خاصا بڑا کمرہ تھا۔
जिसमें कुर्सियां और सोफे रखे हुए थे। दरमियानी मेज़ पर टेलीफोन भी मौजूद था। एक आराम कुर्सी पर एक गैर मुल्की नौजवान एक मोटा सा रिसाला पकड़े उसे देखने में मसरूफ़ था। रिसाले पर एक औरत की लाश का फ़ोटो दूर से नज़र आ रहा था। अभी इमरान कमरे का जायज़ा ही ले रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और वो नौजवान चौंक कर सीधा हुआ और जल्दी से रिसीवर उठा लिया। रोशनदान चूँकि थोड़ा सा खुला हुआ था इसलिए अंदर की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। यस, राजर बोल रहा हूँ, नौजवान ने कड़क लहजे में कहा। ओके ठीक है, मैं इत्तला कर देता हूँ। दूसरी तरफ से सुनने के बाद राजर ने इसी तरह सख्त लहजे में कहा और फिर हाथ बढ़ाकर क्रैडल दबा दिया। नंबर घुमाने शुरू कर दिए। इमरान बड़े इत्मीनान से वो नंबर जहन में महफूज कर रहा था जो जाकर घुमा रहा था। राजर स्पीकिंग, राजर ने इस तरह सख्त लहजे में कहा। तुम लोग तैयार रहो, कल सपहर मिशन शुरू होना है। अभी जैरी ने इत्तला दी है, हम सब ने दारुल हुकूमत से 20 मील दूर कस्बा साजिदपुर पहुंचना है, बाकी हिदायत वहीं मिलेगी। राजर ने दूसरी तरफ से सुनने के बाद उसी तरह कड़क लहजे में कहा और जवाब सुनकर उसने ओके कहा और रिसीवर रख दिया। उसके बाद उसने जेब टटोल कर सिगरेट की डिबिया निकाली और उसे सिगरेट निकालकर मुंह से लगाया और जेब से लाइटर निकालकर उसने सिगरेट सुलगाया और लाइटर मेज़ पर रखकर दोबारा रिसाला पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। इमरान आस्तिकी से वापस मुड़ा। उसने नुमानी को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद तेज़ी से लेकिन एहतियात से चलता हुआ दोबारा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और फिर एक एक सीढ़ी एहतियात से उतरता हुआ इमारत के बरामदे में पहुंच गया। बरामदे के साथ ही पोरिश में वो सुरकार मौजूद थी जिस पर ऑर्डर तंजीम का मखसूस निशान चिस्पा था। वहाँ कोई आदमी नजर न आ रहा था। चुनाचा इमरान और दरमियानी गैलरी की तरफ बढ़ने लगा। आखिरी दरवाजे की निचली दराज से रोशनी बाहर आ रही थी। इमरान मोहतात अंदाज में कदम उठाता आगे बढ़ता गया और दरवाजे के करीब पहुंचकर वो चंद लम्हे रुका और फिर उसने बाएं हाथ से दरवाजे को आहिस्ता से दबाया। दरवाज़ा लॉक न था। उसने बेआवाज़ अंदाज में खुलता गया। इमरान ने झाँका तो राजर रिसाले में मुनक्ता। इसे शायद किसी के इस तरह आमद की ख्वाब में भी तवक्को न थी, इसलिए वो इत्मीनान से रिसाले में गुम था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इमरान ने अचानक कहा और उसकी आवाज़ सुनते ही राजर यूँ उछला जैसे उसके कदमों तले अचानक एटम बम फटा पड़ा हो। लेकिन उसकी फुर्ती काबिले दीद थी कि उछलते हुए इसकी बिजली से भी ज़्यादा तेज़ी से जेब से रिवाल्वर निकाला और मगर उस लम्हे इमरान के हाथ में मौजूद रिवाल्वर से शोला निकला और राजर के हाथों से रिवाल्वर निकलकर दूर जा गिरा और राजर इस कदर सच्चे निशाने से यकलक ठटक कर रह गया। रिवॉल्वर चलाना हमें भी आता है साहबजादे। इमरान ने रिवॉल्वर का रुख राजर की तरफ किए हुए अंदर कदम रखते हुए कहा। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? राजर ने हैरत अंगेज तौर पर खुद पर काबू पाते हुए कहा। बूढ़े लोगों के लिए यह बात फ़ायदेमंद होती है कि वो जा चाहे चले जाएं, पर्दे वर्दे का मसला खड़ा नहीं होता। और रह गई कौन वाली बात, तो राडर को तारीफ़ कराने की ज़रूरत नहीं होती। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। राडर का क्या मतलब? राजर एक बार फिर चौंक पड़ा। राडर का मतलब डिक्शनरी में तो यही लिखा हुआ है कि ऐसा आला जो हवाई जहाज़ों की सिम ज़ाहिर करता है, लेकिन राडर एक ऐसी तंजीम का नाम है जो असली की स्मगलिंग में पूरी दुनिया में मशहूर है राजर साहब, इमरान ने तंज़ीह अंदाज में कहा। और इस बार अपना नाम सुनकर भी राजर ना चौंका। शायद वो मज़ीद हैरत का इजहार ना कर सकता था क्योंकि वो पहले ही हैरत से आंखें फैलाए हुआ था। तुम ज़रूरत से ज़्यादा जानते हो, राजर ने अपने आप को संभालते हुए कहा। नहीं, मैं तो ज़रूरत से ज़्यादा जानने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। बताओ, कल दोपहर कौन सा मिशन शुरू हो रहा है? इमरान ने इस बार कड़क लहजे में कहा। मिशन? कैसा मिशन? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो यहाँ एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फर्म में मुलाजिम हूँ, राजर ने एक लक लहजे बदलते हुए कहा। बूढ़े की बात मान जाओ वरना खामोखा मुझे हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, इमरान ने कहा। लेकिन उससे पहले कि उसका फिक्र मुकम्मल होता राजर यकलक हरकत में आ गया। उसने इंतहाई तेज़ रफ्तारी और चालाकी से इमरान पर इस तरह अचानक हमला किया जो शायद इमरान की तवक्को के भी खिलाफ था। चुनाचा उस हमले का पहला नतीजा ये हुआ कि इमरान के हाथों से रिवॉल्वर निकल कर दूर जा गिरा और इमरान लड़खड़ाता हुआ 2 कदम पीछे हट गया। अब मैं तुमसे पूछूंगा बूढ़े कि तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो? राजर ने दांत पीसते हुए कहा। अच्छा चलो पूछो, इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में कहा। और इस बार राजर ने अपनी तरफ से फुर्ती की इंतहा कर दी। उसने इंतहाई खौफनाक अंदाज में उल्टी कलाबाजी खाकर इमरान के सीने पर भरपूर फ्लाइंग किक मारनी चाहिए, लेकिन इस इमरान संभाला हुआ था। इसलिए जैसे ही राजर ने कलाबाजी खाई, इमरान की लात ने मेकानिकी अंदाज में हरकत की और उसके बूट की टो पूरी कुव्वत से कलाबाजी खाते हुए राजर की सीने पर पड़ी और उसके साथ ही इमरान यकलक साइड में हो गया और राजर चीख मार कर पेट के बल फर्श पर एक जोरदार धमाके से गिरा। उसके नीचे गिरकर उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने यकलक उछलकर उसकी पुष्ट पर दोनों पैरों की ज़रब लगाई। राजर फर्श पर बुरी तरह फड़कने लगा, लेकिन इमरान के एक तरफ हटते ही फड़कते हुए राजर का जिस्म लट्टू की तरह घूमा और उसकी दोनों टांगें इकट्ठी होकर किसी लुट की तरह इमरान की पिंडलियों से टकराई और इमरान बेख्तियार पहलू के बल ज़मीन पर गिरा। लेकिन पूरी तरह नीचे गिरने से पहले ही इमरान हाथ फर्श पर रखकर राजर से
बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमा और तेज़ी से उठता हुआ राजर उसके जिस्म की ज़रब खाकर चीखता हुआ उसकी बार पुश के बल फर्श पर गिरा। उसी लम्हे इमरान उछलकर खड़ा हो गया। राजर ने पुश के बल गिरते ही उल्टी कलाबाजी खाकर सीधा होने की कोशिश की, लेकिन उसकी यही हरकत उसके लिए इंतहाई महंगी साबित हुई। जैसे ही उसने उल्टी कलाबाजी खाने के लिए उसकी दोनों टांगें उसकी सर की तरफ लपकी, इमरान किसी अकाब की तरह उस पर झपटा। उसने इसकी दोनों टांगों को मोड़ा और अपने जिस्म के नीचे दबाया और दोनों पैर उसके बाजू पर जम गए। राजर के मुंह से इस कदर भयानक चीख निकली जैसे इसे ज़िबा कर रहा हो। उसने अपने आप को इस हालत से निकालने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने दबाव बढ़ा दिया और राजर की चीखें और ज़्यादा बुलंद हो गईं। अगर अपनी टांगें धड़ से अलहदा कराना चाहते हो तो फिर हरकत करके देख लो, इमरान ने कराते हुए कहा, और राजर यकलक साख्त हो गया। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह मुसक हो गया था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरी टांगें, राजर बुरी तरह कराते हुए कह रहा था। वो मिशन बताओ जल्दी, वरना इमरान भी ज़रा सा दबाव और डाला। बताता हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, राजर ने चीखते हुए कहा। उसकी तकलीफ वाकई इंतहा पर पहुँच चुकी थी। बताओ जल्दी, इमरान दोबारा गुर्राया। माल गुजरना है, असला बॉस ने, राजर ने सर को तकलीफ़ की शिद्दत से इधर उधर पटकते हुए कहा, और फिर यकलक उसका जिस्म ढीला पड़ गया और वह तकलीफ़ की शिद्दत से बेहोश हो गया। इमरान उसके बेहोश होते ही उछलकर एक तरफ हट गया। बड़ी आरामदायक कुर्सी पर बैठे थे आप। दरवाजे से नुमानी की आवाज़ सुनाई दी। कुर्सी भी ढील पड़ गई। मैं क्या करूं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वाकई राजर की मुड़ी हुई टांगों पर इमरान का बैठना इस तरह था जैसे वो किसी आरामदायक कुर्सी पर बैठा हो। राजर का जिस्म अब सीधा हो गया था, लेकिन वो बेहोश पड़ा था। मैंने सारी कोठी देख ली है और कोई आदमी मौजूद नहीं है, नुमानी ने कहा। हाँ, महसूस यही हो रहा था। तुम ऐसा करो, बाहर जाकर तनवीर को बुला लाओ। इसका कदोकामत राजर जैसा है। उससे कहना कार में मौजूद इमरजेंसी मेकअप बॉक्स भी लेता आए, इमरान ने नुमानी से कहा, और नुमानी सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। उसके कदमों की आवाज़ जब दूर चली गई तो इमरान ने आगे बढ़कर मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और ब्लैक ज़ीरो के नंबर घुमाए। X2 राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ ब्लैक ज़ीरो, ऐसा करो कि एक्सचेंज से टेलीफोन नंबर 12633 के मुकाम का पता करवाओ और फिर जोलिया को ट्रांसमीटर कॉल करके सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान को इस जगह कड़ी निगरानी पर लगा दो। किसी को सामने आने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कड़ी निगरानी की ज़रूरत होगी, बाकी तफसीलात बाद में, इमरान ने कहा और जल्दी से रिसीवर रख दिया क्योंकि बाहर से कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। और फिर चंद लम्हों बाद नुमानी और तनवीर अंदर दाखिल हो गए। तनवीर, तुम उसका लिबास भी पहन लो और मेकअप भी कर लो। उसका नाम राजिर है और उसका ताल्लुक असले की स्मगलिंग करने वाली बैनुल अक़वामी तंजीम रॉडर से है, इमरान ने मोटी मोटी बातें बताते हुए कहा। ठीक है, तनवीर ने कहा और आगे बढ़कर उसने तेज़ी से फर्श पर पड़े हुए राजर का लिबास उतारना शुरू कर दिया। नुमानी, तुम भी जाओ और बाकी साथियों से भी कह दो कि वो वापस चले जाएं, फ़िलहाल काम हो गया है, इमरान ने कहा और नुमानी सर हिलाता हुआ वापस चला गया। जब तनवीर ने लिबास पहन लिया तो इमरान ने एक तरफ पड़ा हुआ मेकअप बॉक्स उठाया और तनवीर को एक कुर्सी पर बिठाकर इसका मेकअप करना शुरू कर दिया। उसके हाथ काफ़ी तेज़ी से रफ्तारी से चल रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद जब उसने हाथ हटाया तो तनवीर मुकम्मल तौर पर राजर का रूप धार चुका था। उसकी जेबों में क्या है, ज़रा बाहर निकालो, इमरान ने तनवीर से कहा और तनवीर ने अपने लिबास की जेबों में से सामान निकाल कर बाहर रखना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ज़्यादा सामान मौजूद न था, सिर्फ सिगरेट की डिबिया, कार की चाबियाँ और एक छोटा सा कार्ड था जिस पे कुछ इनसे लिखकर जमा तफरीक की गई थी। इमरान चंद लम्हे गौर से कार्ड को देखता रहा, जबकि उस दौरान तनवीर ने अपने लिबास जो राजर को पहना चुका था उसकी जेबों से अपना सामान निकाल कर अपने लिबास में मुंतकिल करता रहा। फिर इमरान ने कार्ड तनवीर को दे दिया। उसे जेब में रख लो, शायद काम आ जाए। अब मैं इसे होश में ले आता हूँ ताकि इससे मज़ीद मालूमात हासिल हो जाए। तुम उसका लहजा और आवाज़ अच्छी तरह सुन लेना। उसने एक फ़ोन किया था, इसी दौरान उसका लहजा खासा करक रहा। इमरान ने तनवीर को समझाया और तनवीर ने सर हिला दिया। इमरान ने आगे बढ़कर फर्श पर पड़े हुए राजर की नाक और मुंह को दोनों हाथों से बंद कर दिया। किसी को होश में ले आने का ये सबसे आसान और ज़ोर असर तरीका था। चुनाचा चंद ही लम्हों बाद राजर के जिस्म में हरकत पैदा हो गई और इमरान हटकर खड़ा हो गया। राजर की आंखें खुली तो साथ ही उसके मुंह से करह निकल गई। कुछ लम्हे तो वो लाशऊरी के आलम में इमरान को देखता रहा, फिर उसकी आंखों में शऊर की चमक पैदा हुई और दूसरे लम्हे वो उठकर बैठ गया। लेकिन उस उठकर बैठने के अमल में भी उसके हलक से हल्की सी चीख निकली और चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नमूदार थे। राजर, अगर तुम दोबारा इस तकलीफ़ में मुब्तला नहीं होना चाहते हो तो अपने मिशन की तफसीलात बता दो, इमरान ने खुश्क और सपाट लहजे में कहा। लेकिन राजर इसे जवाब देने के बजाय उठने की कोशिश में मसरूफ़ रहा। लेकिन उसकी टांग और जिस्म के जोड़ बल हिल चुके थे, इसलिए वो कई बार लड़खड़ाने के बावजूद वो उठ
खड़े ना होने में कामयाब ना हो सका। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हो, वरना बाकी सारी उम्र तुम्हारी इस तरह बैठे बैठे ही गुजरेगी, इमरान ने कोच लहजे में कहा। उसी लम्हे राजर की निगाह पहली बार तनवीर पर पड़ी, जो बड़े मुतमईन अंदाज में एक तरफ खड़ा था। राजर की तकलीफ से फैली हुई आंखें मजीद फैलती चली गईं। तुम कौन हो? मेरी शक्ल और लिबास? राजर ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा और फिर अपना लिबास को देखने लगा। सुनो राजर, आखिरी बार कह रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी बचा लो। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारी हैरतों का नज़ारा देखता रहूँ, इमरान ने इंतहाई कड़क लहजे में कहा और तनवीर के हाथ में पकड़ा हुआ रिवाल्वर लेकर उसने इसकी नाल राजर की कनपटी से लगा दी। लेकिन इस बात का क्या गारंटी है कि तुम मुझे ज़िंदा छोड़ दोगे? राजर ने इस बार अपने आप को संभालते हुए कहा। ये तुम्हारे बताने पर मुसर है, अगर तुम सच बोलोगे तो बच जाओगे। मुझे तुमसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है और ये भी मुझे मालूम है कि तुम एक छोटी मोटी मछली हो, इसलिए तुम्हारा ज़िंदा रहना या मर जाना मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखता, इमरान ने खुश लहजे में कहा। पहले मुझे ठीक करो, फिर मैं सब कुछ बता दूंगा, राजर ने शर्त रखते हुए कहा। कोई शर्त नहीं, सिर्फ 5 तक गिनूंगा बस, आगे तुम्हारी मर्जी। 1 2 3। इमरान ने सर्द अंदाज में गिनती शुरू कर दी और राजर के चेहरे से पसीना बहने लगा और उसका जिस्म अब नुमाया तौर पर कांपना शुरू हो गया था। ये शायद इमरान के सर्द लहजे का असर था। राजर को इमरान के लहजे से ही यकीन हो गया था कि वो वही करेगा जो कह रहा है। बताता हूँ, रुक जाओ, बताता हूँ, राजर कांपते हुए लहजे में कहा। जल्दी करो, बोलना शुरू करो, वरना इस बार मैं गिनती वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ पर ख़त्म की थी, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। असला ट्रॉलर ट्रकों के कारों की सूरत में जनूबी मशरक़ी सरहद से लाया जाएगा। 10 ट्रक होंगे, ऐसे ट्रक जिसे तुम्हारे मुल्क में गले की रसद के लिए चलते हैं। हम सब इन ट्रकों की हिफाजत करेंगे। चेकिंग पोस्टों से बातचीत हो चुकी है, इन ट्रकों को रोका नहीं जाएगा, बस मुझे इतना मालूम है, राजर ने कहा। यह असला कहाँ जाएगा? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, सिर्फ चीफ बॉस को इल्म है, दारुल हुकूमत के बाद हिदायत दी जाएगी, राजर ने कहा। चीफ बॉस कौन है और इस वक्त कहाँ मौजूद है? चीफ बॉस तो नाराक में है, यहाँ के मिशन का इंचार्ज जैगर है, वो मिशन को लेने गया हुआ है, अब यहाँ जेरी बॉस है, राजर ने जवाब दिया। तुमने जहाँ फ़ोन किया था वहाँ कितने आदमी हैं? इमरान ने पूछा। 10 अफराद हैं, राजर ने जवाब दिया। रामा ग्रुप को तुमने गोली मार दी थी? इमरान ने पूछा और राजर एक बार फिर चौंक पड़ा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? राजर ने अकलाते हुए कहा। सवाल मत करो, जवाब दो, वरना गिनती शुरू कर दूंगा, इमरान ने कड़क लहजे में कहा। हाँ, वो बॉस जैगर से रकम लेकर गए थे। बॉस ने बैग के तालों में गैस भरी हुई थी और वो बेहोश थे और उन्हें गोली मार कर बैग ले आया था, राजर ने जवाब दिया। उन्हें किस लिए रकम दी गई थी? इमरान ने पूछा। उन्होंने यहाँ के एक शख्स अली इमरान के रूप में वारदातें करनी थी, बस मुझे इतना ही मालूम है, राजर ने कहा। ओके, तुमने सच बोलकर फ़िलहाल अपनी जान बचा ली है, इमरान ने तवील सांस लेकर उठते हुए कहा। तुमने सब कुछ समझ लिया तनवीर, जेरी तुम्हें हिदायत देगा और ये हिदायत तुमने फ़ोन नंबर 12633 पर देनी है, लहजा करक रखना, और जो हिदायत दूँ वो तुमसे तुम्हारा बड़ा खुद ही पूछ लेगा, इमरान ने रिवॉल्वर को जेब में रखते हुए मुड़कर तनवीर से कहा और तनवीर ने सर हिला दिया और इमरान ने यकलक झुककर पूरी कुव्वत से बैठे हुए राजर की कनपटी पर अचानक भरपूर मुक्का जड़ दिया। राजर चीख मारकर लहराया और फिर फर्श पर गिरकर सीधा हो गया। कनपटी पर लगने वाली भरपूर मुक्के ने उसे एक बार फिर बेहोशी की तारीकी में घेर दिया। मैं अपनी कार लेकर आता हूँ, फिर इसे उठाकर दानिश मंजिल पहुँचा दूंगा, अभी शायद इसका ज़िंदा रहना फ़ायदेमंद रहे, इमरान ने कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया, उसने झुककर फर्श पर पड़े हुए राजर को उठाया और बाहर चल पड़ा। कोठी के कंपाउंड में उसकी कार खड़ी थी, उसने राजर को दोनों सीटों के दरमियान डाला और चंद लम्हों बाद उसकी कार कोठी से निकलकर दानिश मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी। अब पूरी सूरत हाल उसके सामने थी, पूरे मिशन का उसे पता चल गया था और उसने इस मिशन के लिए अपने जहन में एक वाज़ेह लाया अमल भी तैयार कर लिया था। मौज़िज़ सामीन, इसी के साथ कहानी का दूसरा हिस्सा यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद एडवेंचर के लिए कहानी के अगले हिस्से का इंतज़ार कीजिए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।